Actually, I am the least qualified person to be speaking on this topic, but somehow, you know, because the topic is seva, and I thought this was a seva given to me by Karna Radhika Mataji, so I may as well take it up with the hope that it will purify me. So thank you so much for giving me this seva. And whatever going to speak is just a repetition of what I from senior devotees, especially Janma Mataji. I was very inspired by one of her lecture that she gave on the mode of service. So I would try to repeat whatever I have heard. And if you don't find something interesting, and it's the mixture that I have made, so it's my fault. So please forgive me for that. Thank So you, Mataji Namtamaji. Thank you for accepting on the last moment. And if anybody is qualified, you're only qualified for Seva topic, Mataji. Mataji, Thank you so much. So we'll start with short prayers. Om Agyantimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurve Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yudhapadakamalam Shri Gurum Vaishnavamsha Shri Rupam Sagajatam Sahagana Raghunathanvitam tam sachivam sadvaitam savadhutam parijana sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamsha He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vansha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा. So we start with our topic. So today's topic is Seva, and Karna Radhika Mataji has given a very apt tagline, that's just passage to Goloka. So before we start, like most of you are already into devotion for a long time and for many years, but just a simple question: what is bhakti? आप लोग मतलब, do you want me to speak in English or Hindi or a mix of both? Please raise your. Mataji, mix. हाँ, मिक्स माता है दोनों. अच्छा, ठीक है. तो आप लोग में से कई भक्ति में काफी सालों से है, और हम बोलते हैं कि इट्स अ कृष्णा कॉन्शियस प्रोसेस दैट वी आर फॉलोइंग. लेकिन ये भक्ति है क्या? व्हाट इज डिवोशन, व्हाट इज भक्ति? आप लोग उसको कैसे डिफाइन करेंगे, अगर एक लाइन में आपको बताना है तो? प्लीज रेज योर हैंड्स इफ यू वांट टू आंसर. आपके जवाब देना चाहेंगे तो. भक्ति है क्या? यस, तुलसी माता जी फ्रॉम धनबाद. Mataji, to serve our gurus, टू serve gurus. serve Guru. Okay. Bhavna. Hare Krishna Mataji, please accept my humble obeisances. Mataji, bhakti means doing work for the pleasure of Krishna. Okay. So you are saying only Krishna, she is saying only Guru. Okay. Krishna, Vaishnava, Guru, Shastra, Sadhu. Like. Okay. What else? So there is someone, Beauty Ghar. I don't know what's your name. Hare Krishna Mataji, Dhanavad Pranam. Mataji, bhakti means to serve Hari, Guru and Vaishnava and to please them. That's it. ओके. तो सर, तो एक चीज कॉमन है आप सभी, किसी ने बोला सिर्फ गुरु को, किसी ने बोला कृष्णा को, किसी ने बोला गुरु साधु शास्त्र, बट वन वर्ड विच इज वेरी कॉमन इज सर्विस.
राइट? सो प्रभुपाद ने बहुत सिंपल अच्छा डेफिनेशन दिया है, भक्ति इज लविंग अनकंडीशनल डिवोशनल सर्विस, प्रेममयी सेवा। आप जितने भी प्रभुपाद की किताबें निकाल लीजिए, वो डायरेक्ट भक्ति वर्ड यूज ही नहीं करते, वो बोलते हैं भक्ति प्रेममयी सेवा, डिवोशनल सर्विस। भक्ति इज डिवोशनल सर्विस। सो भक्ति इज सिनोनिमस विद सर्विस। अगर हम कहते हैं कि हम कृष्ण से प्रेम करते हैं, तो इसका मतलब ये भी है कि हम उनसे उनकी सेवा करना चाहते हैं, राइट? इट्स ऑलवेज सिनोनिमस। और ये सर्विस इज एन इटर्नल पार्ट। हम क्या बोलते हैं, हु आर वी, व्हाट इज आवर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन? हम क्या बोलते हैं, हमारी ओरिजिनल स्वाभाविक स्थिति क्या है? व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ आवर सोल? या नित्यदास। yes, das dasanudas, yani how to serve is our constitutional position. So that is the nature of soul. हम जो हमारे हम जीव तत्व है और हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है वो है कि हम सेवा करते रहते हैं। अगर हम कृष्ण की सेवा नहीं करेंगे तो हम किसी और की सेवा में लगे रहेंगे। प्रभुपाद यूज्ड टू से, इफ यू आर नॉट सर्विंग गॉड, यू आर सर्विंग डॉग। सो यू नो, ये हमको ध्यान रखना है कि हम किसकी सेवा में लगे हैं, हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, जो हमारी नेचुरल आसक्ति है सेवा करने की, वो हम कहाँ लगा रहे हैं। तो ये लव एंड सर्विस गोज हैंड इन हैंड। हम इवन जनरल संसार में जब हम देखते हैं, इवन इन अ नॉर्मल लाइफ, व्हेन वी से आई लव यू, इट आई वांट टू सर्व यू, इज इट नॉट? इवन एन हस्बैंड वाइफ, जैसे एक शादीशुदा कपल है, तो जब एक पत्नी बोलती है कि मैं अपने पति से बहुत प्रेम करती हूँ, तो नेक्स्ट स्टेप इज she will express her love through some service, right? Is it not? हम घर में अगर कोई आपको बोलता है मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन आप उसको बोलोगे ठीक है मेरे लिए, मैं बीमार हूँ, जरा मेरे लिए गोली ला के दे दो, टैबलेट, वो बोलेगा नहीं नहीं मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ लेकिन मैं आपके लिए कुछ कर नहीं सकता हूँ। डू यू थिंक दैट इज रियल? मतलब वो आपको बहुत फेक लगेगा कि भाई ये तो बोल रहा है खाली, लेकिन ये आपके लिए कुछ करने को तैयार नहीं है। तो वो झूठ मूठ का प्रेम, आजकल जो सो कॉल्ड लव होता है, जो हम खाली चैटिंग कर रहे हैं, सो कॉल्ड रोमांस आजकल होता है, यू नो, एक्सचेंजिंग मैसेजेस बट नॉट एक्चुअली रेडी टू सर्व। तो रियल लव इज सर्विस। और ये बात भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बहुत ब्यूटीफुली एक सेंटेंस में बताई। ही सेज कि लाइफ विदाउट लव इज यूजलेस, दे से, राइट? हम सब व्हाट इज एन इंट्रिंसिक नीड ऑफ ईच सोल? वी वांट टू लव एंड वी वांट टू बी लव्ड। इज इट नॉट? हम सभी के मन में ये इच्छा है, हम चाहते हैं कि सब हमसे प्रेम करें और हम भी किसी पर अपना प्रेम दिखाए, राइट? सो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उन्होंने बताया, लाइफ विदाउट लव इज यूजलेस, दे से, अपॉइंट मी इन दाई सर्विस ओ लॉर्ड with love as my pay, अपॉइंट मी इन दाई सर्विस ओ लॉर्ड विथ लव एज माई पे। यानी भगवान को वो रिक्वेस्ट कर रहे कि आप मुझे अपनी सेवा में लगाइए, और उसका जो बोलते हैं ना सैलरी, उसकी सैलरी यही है कि मुझे आपका प्रेम चाहिए, कृष्ण प्रेम चाहिए। यानी एक सिंपल शब्दों में उन्होंने बता दिया, हम सब प्रेम के पीछे पागल है, हम सब चाहते हैं कि हमारे जीवन में प्रेम हो। और असली प्रेम कैसे आएगा? जब हम कृष्ण की सेवा में लगेंगे। तो अगर हम कृष्ण की सेवा में लग जाते हैं तो नेचुरली हमारा प्रेम उनके प्रति विकसित होगा। जैसे एक छोटे बच्चे को भी हम बहुत बेसिक एग्जांपल देते हैं कि जब एक छोटा बच्चा होता है, अगर उसको कोई अडॉप्ट करता है, सपोज अ कपल डजंट हैव अ चाइल्ड एंड दे अडॉप्ट अ चाइल्ड, सो हाउ डू दे डेवलप द लव फॉर द चाइल्ड नेचुरली? ऐसा तो नहीं है कि 9 महीने माँ ने गर्भ में पाला है तो उसे बहुत प्रेम हो गया बच्चे से, नहीं, उसने अडॉप्ट किया है। बट देन once she starts serving the child, वो उसके लिए पकाती है, उसका टॉयलेट साफ करती है, उसके कपड़े बदलती है, उसको नहलाती है, उसके साथ आदान प्रदान करती है, उसको बोलना सिखाती है, चलना सिखाती है, इस तरीके से धीरे धीरे उसका कनेक्शन उससे बढ़ते जाता है। एंड आफ्टर 5 to 6 years you ask her and she would be so much in love with that child, is it not? तो ये प्रेम कैसे विकसित होता है? ये प्रेम विकसित होता है सेवा से। ये पॉसिबल है। हाँ, थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है ना साउंड। भारती माता जी, could you? Yes, Mataji, your voice. Okay, so ये naturally we can develop love. For example, we have deities. Why do we say कि हमें deity worship करना चाहिए? जब हम अपने deities के लिए बहुत सुंदर सुंदर ड्रेस पहनाते हैं, उनको तैयार करते हैं, उनकी आरती करते हैं, उनको भोग लगाते हैं, तो नेचुरली हमारा उनसे कनेक्शन बहुत स्ट्रांग हो जाता है। और हमें से कईयों को ये एक्सपीरियंस हुआ होगा कि
द डीटी इज एक्चुअली रेसिप्रोकेटिंग विथ यू. किसी दिन आप प्रसाद लगाना भूल जाओ, आपको मन में खटका आ जाएगा, अरे मेरे भगवान तो भूखे और हम मजे से खा रहे हैं. इज इट नॉट? आप कहीं बाहर चल दिए शादी में और भगवान को भोग नहीं लगाया. या कभी भगवान को आप फैन खोलना छोड़ दो, आपको गर्मी लगेगी, आपको लगेगा अरे मेरे भगवान तो वहां पे बिना फैन के गर्मी में और मैं यहाँ पे एसी में बैठी हूँ. राइट? तो ये कहीं ना कहीं आपको भगवान साइंस देंगे. तो ये रेसिप्रोकेशन, ये प्रेम तब बढ़ता है जब हम सेवा करते हैं. और ये चीज एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब एक मंदिर में आते हैं तो उनको बोलते हैं कि व्हाई डोंट यू गो एंड टेक दर्शन ऑफ द लॉर्ड. तो बोलते कि मुझे भगवान को देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन भगवान ने मुझे देख लिया क्योंकि मैं उनकी सेवा कर रहा हूँ. सो इट इज सेड दैट डोंट ट्राई टू सी गॉड, बट सर्व इन अ वे दैट गॉड वांट्स टू सी यू. इज इट नॉट? आप भगवान को देखने की कोशिश मत कीजिए, आप इतना अच्छा सेवा करिए कि भगवान खुद उतर के आए देखने के लिए कि अरे ये कौन सा मेरा भक्त है जो मेरी सेवा कर रहा है. इसका क्लासिक एग्जाम्पल पुंडलीक है. वो अपने माता पिता की सेवा में इतना व्यस्त था और उसके माता पिता बहुत अच्छे भक्त थे. और जब भगवान आते हैं विट्ठल, वो बोलते हैं आओ देखो पुंडलिक में तुम्हें दर्शन देना आया हूँ. भगवान खुद चल के उनको दर्शन देने आते हैं. तो वो उनको रोक देते, रुको पहले मुझे मेरी सेवा पूरी करने दो, मैं आता हूँ. तो भगवान एक्चुअली एक ईंट पर खड़े रहते हैं, वेट करते हैं अपने भक्त का, और उनका नाम पड़ जाता है विट्ठल. सो देखो भगवान खुद अपने भक्त के लिए चल कर आते हैं दर्शन देने, जो उनके या उनके भक्तों की सेवा में लगे हुए हैं. सिमिलरली वी हैव वन मोर एग्जाम्पल. जैसे आपने सुना होगा भगवान राम जी के पास एक डायरी थी और उसमें वो अपने पूरे खास भक्तों को जो उन्हें बहुत प्रेम करते हैं उनका नाम लिखते थे. So there was one time when actually Hanuman ji came to know, Narad Muni went and told, you know what, Lord Ram has one diary and he writes the names of all his special devotees in that. So Hanuman ji became inquisitive. Oh wow, तो उसमें कहीं ना कहीं मेरा भी नाम होना चाहिए. तो वो बहुत एक्साइटेड होके राम जी के पास आते हैं. बोलते कि भगवान मैंने सुना है कि आपके पास कोई एक डायरी है. बोले हाँ जरूर है. तो बोले उसमें आपने उन सभी के नाम लिखे हैं जो आपको बहुत प्रेम करते हैं, आपके खास भक्त हैं. बोले जरूर है. तो बोले क्या आप मुझे वो डायरी दिखा सकते हैं? तो बोले देख लो कोई बात नहीं. सो भगवान राम जी उसको उनको दे देते हैं और वो पन्ने पलटा रहे कहीं उनका नाम ही नहीं है. तो ही वॉज वेरी लाइक लिटिल डिसअपॉइंटेड कि अरे मैं तो भगवान को इतना प्रेम करता हूँ, तो भगवान की लिस्ट में कहीं मेरा नाम क्यों नहीं है. तो वो बहुत दुखी होके भगवान के पास आते हैं और भगवान को तो सब मालूम है, वो स्माइल कर रहे हैं मंद मंद अपने मन में. और हनुमान जी आकर पूछते कि अरे इसमें मेरा नाम क्यों नहीं है. मतलब मैं भी तो आपका भक्त हूँ, मैं हमेशा आपकी सेवा करना चाहता हूँ, बट इस लिस्ट में कहीं भी मेरा नाम नहीं है. तो वो बोलते हैं कि हाँ इसमें तो नहीं है, बट मेरे पास एक और डायरी है. बोले अच्छा ये तो मेरे को पता ही नहीं था. तो बोले वो डायरी कैसी है? तो बोले इस डायरी में उन लोगों का नाम है जिन्हें मैं सबसे ज्यादा प्रेम करता हूँ. और उसमें जैसे ही वो डायरी खोलते हैं नंबर 1 पोजीशन पे हनुमान जी का नाम है. सो दीज आर द डिवोटीज हुम लॉर्ड लव्स. राइट? तो ये चीज हम देख सकते हैं जब कोई सेवा करता है. जैसे हम देखते हैं, वी ऑल नो देयर आर 9 प्रोसेसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस. राइट? उसमें एक है दास्यम. एंड दास्यम के लिए हम सबसे आइडियल एग्जाम्पल किसका दे सकते हैं? वी कैन गिव द एग्जाम्पल ऑफ हनुमान. ही वॉज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दास्य भाव. राइट? इन्होंने अपना सब कुछ कर दिया, वो हर तरीके से ही वॉज रेडी टू सर्व लॉर्ड राम इन एनी वे. जब वो पर्वत से जब छलांग लगाने जा रहे थे, जब उनको समुद्र लांगना था, तो उनको जाम्बवन ने पूछा हाउ फार कैन यू गो. सो ही टोल्ड दिस इज अ वेरी रॉन्ग क्वेश्चन. You shouldn't be asking me कि how far I can go. You should be asking how far Lord Ram can take me. तो वो अपने आप को भगवान राम जी का एक एरो समझते थे. ही वुड कंसिडर हिमसेल्फ जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड ऑफ लॉर्ड राम, कि भगवान राम अपने बाण को जितना दूर छोड़ेंगे वो उतना दूर जा सकता है. तो ये भगवान राम मुझे जहां तक ले जाना चाहते हैं, मुझे जितना यूज करना चाहते हैं एज एन इंस्ट्रूमेंट, आई एम रेडी टू सर्व इन दैट वे. It doesn't matter whether it's a small service or a big service, but I am ready to become an instrument. और जब वो सीता जी के पास जाते हैं तो सीता जी के सामने पहले छोटे रूप में आते हैं, फिर वो बड़ा रूप लेते हैं. एंड देन सीता मैया आस्क व्हाट इज योर एग्जैक्ट साइज, आई एम कंफ्यूज्ड. तो ही सेज एक्चुअली मदर सीता, आई एम वेरी स्मॉल, but I am ready to take any size for the service of Lord Ram. That was a very humble answer of Lord Hanuman. तो ये एक, हम जब सेवा करते हैं ना, हमारा यही मूड होना चाहिए कि हम तो बहुत छोटे हैं, हमारी कोई
क्वालिफिकेशन है ही नहीं सेवा करने की। लेकिन भगवान की सेवा में अगर हमको बड़ा भी बनना पड़े, यानी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ी, बड़ी पोजीशन लेनी पड़ी, तो हम वो भी लेने को तैयार है। और हमको अगर छोटी सी सेवा करनी पड़ी, कोई मीनियल सर्विस करनी पड़ी, बर्तन मांजना पड़ा, झाड़ू हम तो उसके लिए भी रेडी है। सेवा इज सेवा, इट कुड बी एनीथिंग। तो ये हम देखते हैं कि सेवा कैसे भगवान को अट्रैक्ट करता है हमारी तरफ। कृष्णा वुड बी फोर्स टू सी अस। हम बोलते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कृष्णा? कोई बता सकते हैं व्हाट इज कृष्णा मीन? कृष्ण शब्द का अर्थ क्या है? Attractive Mataji. All attractive, Mataji. All Yes. attract. ऑल अट्रैक्टिव। तो कृष्ण सबको अपने प्रति आकर्षित कर सकते हैं। कृष्णा कैन पुल एवरीवन टुवर्ड्स हिम, ही इज मोस्ट अट्रैक्टिव। बट व्हाट अट्रैक्ट्स कृष्णा द मोस्ट? दैट इज सर्विस। If we want to attract Krishna towards us, we have to serve lovingly, unconditionally. That is one thing that can attract us to Krishna. And सेवा कैसे करनी है उसकी बुद्धि भी भगवान खुद ही हमको देते हैं। तो इन 10.10 ऑफ भगवद गीता, Lord Krishna says, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयन्ति ते. So he says to those who are constantly devoted to serving me with love, I give them the understanding by which they can come to me. तो जो हम बोल रहे पैसेज टू गोलोका, वो सेवा, हाउ डज इट बिकम अ पैसेज टू गोलोका? जब हम सेवा करते हैं, इट लीड्स टू प्यूरिफिकेशन, एंड दिस प्यूरिफिकेशन लीड्स टू दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो. द नॉलेज विद इन आवर हार्ट अराइजेस, एंड विद दिस नॉलेज वी डेवलप प्रेमा टुवर्ड्स लॉर्ड. एंड कृष्ण खुद हमें बुद्धि देते हैं कि सेवा को हम अच्छे से कैसे परफॉर्म करें और हम कैसे उन तक आ सकते हैं. और ऐसे गोलोका में हम देखते हैं ना, वहां पे आप प्रीचिंग नहीं कर सकते हो क्योंकि वहां सभी भक्त है, राइट? वहां पे आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते हो क्योंकि वहां तो सब ऑलरेडी भक्त है. वहां आप हर तरह की सेवा कर सकते हो। जो सेवा आप यहाँ कर रहे हो वो सेवा भी आप वहां कर सकते हो. सो दिस इज समथिंग विच विल स्टे कॉन्स्टेंट विथ यू. जो सेवा भाव है, सेवा है, ये चीज आपके साथ हमेशा रहेगी, गोलोक में भी कंटिन्यू होगी, ऑफकोर्स हरि नाम भी, लेकिन ये आपके साथ सेवा हमेशा रहेगी. तो इसलिए हमें कभी भी, काफी लोग बोलते हैं कि हम हमारा भजन कर रहे हैं, एकांत भजन कर रहे हैं, बट प्रभुपाद यूज्ड टू से वर्क नाउ समाधि लेटर, राइट? तो ये बहुत जरूरी है कि यस, हम अपनी पर्सनल साधना करें विच विल एम्पावर अस टू डू आवर सर्विस बेटर, बट देन वी शुड नॉट एक्सक्यूज आवरसेल्फ फ्रॉम सर्विसेज इन द नेम ऑफ आवर पर्सनल साधना और भजन, बिकॉज समटाइम्स वी टेक इट एज एन एक्सक्यूज. जैसे कई बार बोलते हैं हम हरे कृष्णा महामंत्र कर रहे हैं, एंड द मीनिंग ऑफ हरे कृष्णा महामंत्र इज, ओ राधा रानी प्लीज एंगेज मी इन द सर्विस ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा. और जब एक्चुअली सर्विस आती है तब अरे ये सब मुझे क्यों मिल रहा है, देयर आर सो मेनी अदर डिवोटीज, व्हाई डोंट यू टेक देम फॉर द सर्विस? जब एक्चुअली राधा रानी कृपा बरसाती है, इट मीन्स यू आर चैंटिंग रियली वेल, जब आपको सर्विसेज आ रही है. और इसके कई कई एग्जाम्पल हम शास्त्र में देख सकते हैं. जैसे ये मैं एक जगह सुन रही थी कि आई थिंक दाशरथी जो है रामानुजाचार्य के डिसाइपल थे, उनको वो बहुत ही स्कॉलरली थे, लेकिन एक बार एक स्त्री रोते हुए आती है रामानुजाचार्य के घर पे, एंड वहां पे पास, और व्हेन ही आस्क्स कि आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या बात है, आपके लाइफ में सब अच्छा चल रहा है या नहीं, तो शी टेल्स कि नहीं, आई एम जस्ट मैरिड, बाकी सब तो ठीक है, बट माई इन लॉज आर नॉट दैट गुड, दे कीप टॉन्टिंग मी फॉर द वर्क, पूरा काम मैं अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ, उनको सेटिस्फाई नहीं कर पा रही हूँ. तो वो एक्चुअली दाशरथी को उनके पास भेजते हैं कि आप जाइए और इनकी मदद करिए घर के कामों में. And he actually does very menial services just for the pleasure of his guru. And काफी टाइम वो सेवा करते हैं डेडिकेटेडली, और वो औरत को, स्त्री को पता भी नहीं होता है कि ये इतने बड़े संत है और इतना उनको नॉलेज है. Then suddenly one day there was one person who comes to their house and they start blaspheming the Supreme Lord कि भगवान एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं. और वहां पे उनको फिर वो एकदम दाशरथी वो सुन नहीं पाते, और फिर वो काफी फिलोसॉफिकल डिस्कशन में लग जाते हैं, और वो काफी शास्त्र से रेफरेंसेस देते हैं और बताते हैं कि हाउ सुप्रीम लॉर्ड डज एग्जिस्ट. एंड दिस लेडी वाज शॉक्ड. बोले रामानुजाचार्य के पास वो जाके बोलती है, अरे आपने इतने महान संत को मेरे घर पे एक मीनियल जॉब्स के लिए भेज दिया, बर्तन मांजने के लिए, ये सब चीजों के लिए, और मैंने इतना बड़ा ऑफेंस किया है. तो बोले नहीं, दिस वाज अ टेस्ट फॉर हिम एंड ही हैज पास्ड, कि ही इज रेडी टू डू टेक अप एनी सर्विसेज which his guru has given for the pleasure of guru. So now he can
come back. So actually na, seva doesn't mean what we want to do. Seva is what our guru wants us to do. We should not be particular कि हाँ मुझे तो यही करना है, मैं तो यही सेवा करूंगी, वो नहीं करूंगी. When I was in my one of my congregation, तो वहाँ पे जब सेवा करते थे तो हमारे शिक्षा गुरु हमको बोलते थे बड़े बड़े बर्तन भी देते थे माजो. एंड वी वर वेरी यंग और हमको लगता था पता नहीं हम वो पकड़ भी पाएंगे या नहीं. एंड यू वुड से और घस घस के माजो, तुम जितना उसको घसोगे उतना तुम्हारा हार्ट प्यूरिफाई होगा, उतना तुम्हारे मन का मैल भी गंदा होता जाएगा. समझ लो वो तुम्हारा मन है, उस बर्तन को ऐसा देखो तुम्हारा मन है, उसको जितना रगड़ोगे ना उतना तुम्हारा मन साफ होगा. एंड वी वुड भी पूरा घस घस के इतना चमकाने की कोशिश करते थे कि यू नो इस बहाने हमारा मन भी साफ हो जाए. सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ सर्विस. इवन इन जनरल लाइफ वी सी कि सर्विस ना कितना आप हर आप किसी को भी पिघला सकते हो सर्विस से. कोई भी इंसान क्या चाहता है, हम चाहते हैं अरे कोई हमको प्रेम दे, कोई हमारी कुछ सेवा कर दे. एवरीवन वांट्स दैट. जैसे गुलाम अली का एग्जांपल जानवा माता जी देते हैं कि ही इज अ वेरी ग्रेट म्यूजिशियन, वी ऑल नो. तो वो अपने जो गुरु की है ना रोज सेवा करते थे. तो एक रात क्या हुआ, वो उनके चरण दबा रहे थे, ही वॉज प्रेसिंग हिज मसाजिंग हिज फीट. And he went on for the whole night because उनके जो गुरु थे वो he slept actually. He forgot to tell him to stop. अभी एटिकेट क्या है, जब तक सामने वाला मना नहीं करता है आप दबाते जाओ, राइट. बट अब आजकल के जनरेशन में देखती हूँ 2 मिनट दबाया नहीं गायब हो जाते हैं, अरे उनके हाथ दुखने लग जाते हैं. सो बट दैट टाइम यू नो ही वाज सो डेडिकेटेड. And suddenly in the middle of the night his guru wakes up and he's like, what are you doing, why are you still here? So बोले कि नहीं मैं आपके feet massage कर रहा था and you slept, I thought you need that massage, so because you didn't ask me to stop I continued. But he was so impressed by his dedication कि he said कि कल सुबह तुम आओ, मैं तुम्हें म्यूजिक के हर वो सीक्रेट बताऊंगा जो किसी को नहीं मालूम है. And from next morning he started his actual training and he became such a great singer. तो इवन हम सुनते हैं शिला प्रभुपाद के सिस्टर का स्टोरी कि उनके जो हस्बैंड थे ही वाज इनटू ऑल काइंड ऑफ रॉन्ग एक्टिविटीज. उनका परस्त्री संबंध था, ही वुड ड्रिंक, ही वुड ईट नॉन वेजिटेरियन फूड एंड मेनी थिंग्स. बट शी पेशेंटली सर्व्ड हिम. उन्होंने सिर्फ उनकी सेवा की, बहुत प्यार से अनकंडीशनली सेवा की. एंड लेटर ही वॉज अ टोटली चेंज्ड मैन. शी केप्ट ऑन डूइंग हर साधना, वो अपना चैंटिंग करते रहे, अपना फॉलो करे और वो उनकी बस प्यार से सेवा करने लगे. और वो सेवा का प्रभाव था कि ही टोटली मेल्टेड एंड ही बिकेम अ चेंज्ड पर्सन. तो सेवा ऐसा होता है ना कि वो किसी को भी पिघला सकता है. एंड सेवा में हम देखते कि देखो जैसे मैं बता रही थी 9 डिवोशनल सर्विस में दास्यम आता है. एंड अनदर थिंग, okay, I will ask you, there are so many rasas in which we can have relationship with the Supreme Lord. But what is one thing which is common in all the rasas? चाहे वो वात्सल्य हो, माधुर्य हो या जो भी रसा हो, उसमें एक चीज कॉमन क्या है? प्रेम माता जी. प्रेम एंड भक्ति. भक्ति तो है, प्रेम या दास्य रस माता जी. सेवा. या सेवा, दास्य रस हम बोल सकते हैं कि देखो इवन इन माधुर्य भाव द गोपीज वांट टू सर्व द लॉर्ड, राइट, कि मैं उनको कैसे उनको प्लीज कर सकती हूँ. इवन इन शांत रस, लाइक अगर बांसुरी है या फिर कोई एक पेड़ है या कुछ भी पत्थर एक पैलेस के बने हैं भगवान के, वो सेवा करना चाहते हैं. सो दैट वन थिंग इज कॉमन इन ऑल द रसस कि हर किसी भी संबंध में जो भक्त है वो सेवा करना चाहता है भगवान की. सो सेवा इज नॉट अ बर्डन, सेवा इज नॉट अ जॉब, इट्स अ प्रिविलेज, राइट. हमको वो ऐसा नहीं है कि हम सेवा करके किसी पर एहसान कर रहे हैं या वी आर डूइंग अ फेवर ऑन लॉर्ड. भगवान को कोई चीज की कमी नहीं है. इफ यू फील कि वी आर ऑफरिंग 56 भोगा और 108 भोगा, ओ वी हैव डन समथिंग ग्रेट, forget about it. There is Radha Rani who can prepare thousands of items एंड नई नई चीज और हमसे भी बहुत अच्छा बना सकते हैं. तो ये मत सोचिए कि उनको प्रसाद की कमी है. जगन्नाथपुरी में उनको नॉन स्टॉप प्रसाद मिलता है. तो ऐसा नहीं है कि उनको कोई चीज की कमी है. हम अपने अथॉरिटी पे या गुरु पर या फिर हम भगवान पर किसी प्रकार का कोई फेवर नहीं कर रहे हैं सेवा करके. इट्स अ प्रिविलेज और वो बड़ी मुश्किल से मिलता है, वो हर किसी को मिलता भी नहीं है. बट इफ वी हैव अ सिंसियर डिजायर we will surely get it. तो कई लोग बोलते हैं अरे मंदिर में सेवा ही नहीं मिली हमको, तो काफी लोगों को देखो उन लोग को मिल रहा है सेवा, हमको सेवा नहीं मिल रही है. अरे सेवा तो बहुत है, अनलिमिटेड है. इफ यू हैव अ डिजायर टू सर्व इन एनी वे, अरे झाड़ू ले लो, झाड़ू झाड़ू, कौन मना करेगा.
या एक कपड़ा ले लो, वहां सफाई शुरू कर दो, सब बर्तन मांजना शुरू कर दो, कोई मना नहीं करेगा. यू कैन ऑलवेज आस्क द अथॉरिटी, हाउ कैन आई सर्व. लाइक मेनी गर्ल्स दे कम टू मी, माता जी कोई सेवा है क्या? मैं बोली मेरे पास हजारों सेवा है, मैं आपको कितना सेवा कर सकती हूँ, आप अपनी कैपेसिटी बनाओ, उतनी सेवा मैं आपको दे सकती हूँ. और अगर सेवा नहीं है तो मैं सेवा क्रिएट कर दूंगी आपके लिए, डोंट वरी. यू टेल मी हाउ मच यू कैन सर्व, आई एम रेडी टू गिव यू सर्विसेज. तो ये एक्चुअली सेवा करने की इच्छा होनी चाहिए. और सेवा एक बहाना है जहां हम एक बहाना है जहाँ कृष्ण के करीब आना है और भक्तों के करीब आना है. तो वो उसके बहाने से थ्रू सर्विसेज, दैट इज द बेस्ट वे टू एसोसिएट विद अदर डिवोटीज. बोलते कि नॉन डिवोटी एसोसिएशन है, इट्स वेरी इजीली एक्सेसिबल बट इट इज नॉट वैल्यूएबल. लेकिन जो डिवोटी एसोसिएशन इज वेरी वैल्यूएबल एंड इट इज नॉट सो इजीली एक्सेसिबल. दो नाउ डेज because of Srila Prabhupada, we get devotee association very easily, but we do not value it. But the best way to associate with a devotee and become closer to them is through service. जब आप कोई सेवा में साथ में करते हो ना, आप एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब आ जाओगे, आपका रिलेशनशिप और प्रगाढ़ हो जाएगा. इट विल बिकम डीपर एंड डीपर, राइट. विदाउट सर्विस आप क्या दिन भर क्या बात करोगे? It's always a limited conversation, but when you are into some services together, that deepens your relationship. So it's very important to serve together in a very, very cooperative way. There's a very beautiful acronym that Janma Mataji had given, seva. So seva का spelling हम क्या लिखते हैं? SEVA. But she told we can write it also as SEWA. कितने भी A's हम ऐड कर सकते हैं. सेवा. So that is serving enthusiastically with affection, attention, absorption, attraction. वो हम ऐड कर सकते हैं उसमें, राइट. तो जब तक सेवा शुड ऑलवेज बी विथ लॉट ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड अफेक्शन, प्रेम के साथ होनी चाहिए. हम देखते हैं नरोत्तम दास ठाकुर, उन्होंने क्या किया? ही एक्चुअली क्लीन हिज गुरु स्टूल एवरी डे. वो रोज जंगल जाते थे निवृत्त होने, एंड नरोत्तम दास ठाकुर would silently go and clean the place every time his Guru Maharaj had passed stool. And every day morning Lokanath Goswami Maharaj would see कि प्लेस पूरा क्लीन कैसे हो गया अपने आप. तो पहले तो ये प्रॉपर टॉयलेट्स, पब्लिक टॉयलेट्स ये सब नहीं होते थे. तो he would be surprised, but one day he actually saw him and he was the only disciple that he made. Actually उन्होंने पहले दीक्षा के लिए मना कर दिया था, बट उनके सिंसियर सर्विस को देखकर वो भी पिघल गए और उन्होंने उनको शिष्य के रूप में स्वीकार किया. तो दिस इज व्हाट सेवा कैन एक्चुअली डू, कि वो बड़े से बड़े या छोटे से छोटा भी सर्विस हो, हम अगर जेन्युइनली किसी को प्रेम से सेवा करें तो सामने वाला का हार्ट पूरा पिघल जाएगा और उसकी कृपा हमको इजीली प्राप्त होगी. तो सेवा कैन बी ऑफ कोर्स फॉर रिवॉर्ड्स, इट कैन बी ड्यूटी सेक, बट द बेस्ट फॉर्म ऑफ सेवा इज आउट ऑफ लव. तो काफी लोग सेवा करते हैं, ठीक है करना ही है तो कर लेंगे, जबरदस्ती का कर लेंगे, बट इट शुड बी आउट ऑफ लव. It should be very natural. And of course, as you all mentioned, seva can be towards Krishna, seva can be towards spiritual master, it can be towards senior Vaishnavas, it could even be towards junior Vaishnavas. Now, I will ask you a question. What are the different ways in which you can serve Krishna? आप भगवान की सेवा किस तरीके से कर सकते हैं डायरेक्टली? मैं अभी खाली भगवान की बात कर रही हूँ. So anyone, you all can raise your hand and give some ways where you can serve Krishna. आपको समझ में आया? DT worship के दंडवत प्रणाम. हाँ. We can make bhogas to Yes. offer Krishna. भोगा बना सकते हैं. हरिनाम सेवा. हरि नाम सेवा. Yes. We can even do seva of the cows for Krishna. I mean, अभी मैं डायरेक्ट कृष्णा की बात कर रही हूँ. काउस भक्त के रूप में आ जाते हैं, या गार्लैंड्स उनके Okay. फूल माला बना सकते हैं उनके लिए. और Ma'am, we can sew clothes for them. क्लीन कर कर उनका बहुत मंदिर क्लीन कर कर Yes. उनका मंदिर क्लीन कर सकते हैं, उनके लिए बहुत सुंदर पोशाक ड्रेस बना सकते हैं, उनको ऑर्नामेंट्स से सजा सकते हैं, श्रृंगार कर सकते हैं. कीर्तन गा सकते हैं. कीर्तन, हाँ, उनके नाम का कीर्तन कर सकते हैं, जपा कर सकते हैं. और वैशाली माता जी? भोगा बना सकते हैं. हाँ, भोगा हो गया. So yes, these are the ways you can directly serve the Lord, right? उनको आप DTs को आप या भगवान हरि नाम प्रभु को आप वैसे सेवा कर सकते हैं. Now how can you serve a spiritual master?
ओके, अभिषेक, यस, उनका अभिषेक कर सकते हैं स्पेशल इवेंट्स पे, और रोज भी। या आप गुरु की सेवा किस तरीके से कर सकते हैं? या यू ऑल कैन अनम्यूट भावना, या वाणी सेवा। by following their instruction. Yes, that is the best way, by following the instructions of the spiritual master, by preaching। हाँ, जो आप उनसे सुनते हैं उसको रिपीट कर सकते हैं, आप लोगों को बता सकते हैं। Yes, what else? वपु सेवा माता जी। बापू सेवा भी आप उनके उनके लिए प्रसाद बना सकते हैं, उनके नीड्स का ध्यान रख सकते हैं, फिजिकल नीड्स का, उनकी दवाई, उनका पानी, उनको जो भी उनके कपड़े धो सकते हैं, उनके लिए बेड रेडी कर सकते हैं। मतलब इट डिपेंड्स, ऑफकोर्स हम सन्यासीज का लेडीज नहीं कर सकती, बट वट एवर हम कुकिंग कर सकते हैं आप उनके लिए, और वट एवर इज रिक्वायर्ड, जूस बना सकते हैं, या फिर जो भी उनका कुछ ट्रांसक्रिप्शन जरूरी है तो हम वो कर सकते हैं, उनके लेक्चर्स का ट्रांसक्रिप्शन कर सकते हैं, उनको ऑफरिंग दे सकते हैं बर्थडेज पे, उनके व्यास पूजा पर, और इनवाइट टू होम फॉर प्रोग्राम, उनके सत्संग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जगह जगह उनके प्रचार में हम सहायक हो सकते हैं। वी कैन हेल्प हिम इन हिज प्रीचिंग और इन हिज प्रोजेक्ट्स, वट एवर प्रोजेक्ट्स ही हैज टेकन अप, राइट? एंड हाउ कैन वी सर्व सीनियर वैष्णवस? Yeah, see, very nice point. Ramya Mataji says, cultivating humility. So the Guru would be very happy if we cultivate humility, and yeah, we show what he preaches through our actions. अगर हम अपने स्वभाव से, हमारे विचारों से हम ये एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम ह्यूमिलिटी दिखा सकते हैं, हम अच्छे एक भक्त बन सकते हैं, इससे ज्यादा एक गुरु को कोई खुशी नहीं दे सकता है। या जो सीनियर वैष्णव है उनको हम सेवा करके अलग अलग प्रकार से, अगेन जो हमने स्पिरिचुअल मास्टर्स के लिए बोला वो भी कर सकते हैं। सीनियर भक्तों का हम ऐसे सेवा कर सकते हैं। जूनियर भक्तों की हम सेवा कैसे कर सकते हैं? जो हमसे जूनियर है, नए नए आए हैं, हाउ कैन वी सर्व देम? और माता जी जैसे इफ दे हैव एनी डाउट या फिर कुछ उनको हेल्प की नीड हो तो उस चीज को हम पूरा करते हुए उनकी सेवा कर सकते हैं, वेरी गुड। या फिर उनको सही रास्ता दिखाकर। परफेक्ट, बाय शेयरिंग नॉलेज, यस, वेरी गुड। बाय उनको गाइड कर सकते हैं, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो उनको समझा सकते हैं, उनको पर्सनली लव केयर दे सकते हैं जो उनको ज़रूरत है। एक आई ऑलवेज टेल वी शुड बिकम अ फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड फॉर देम। या तो वो हम उनके लिए बन सकते हैं। जो हम प्रचार कर रहे हैं वो भी एक तरह से सेवा है। वो हमें एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि हम भगवान के बारे में उनसे चर्चा कर सके। वी आर एबल टू स्पीक अबाउट कृष्णा because of them. If we don't have an audience, whom are you going to preach, right? So there is no preaching program is successful without the audience. तो ये बहुत जरूरी है। Yeah, we can engage them in seva with guidance, very important. So जो नए भक्त आते हैं, मैं देखती हूँ with practical experience, most of the people they are more attracted to seva. जो भी नए नए मंदिर आते हैं ना, माता जी हमको कुछ सेवा दे दो, मतलब दे माइट नॉट बी इंटरेस्टेड इन फिलोसफी। अभी आते ही हम अगर उसको भगवत गीता का ज्ञान देंगे तो शायद वो भाग जाए, लेकिन हम क्या करते हैं, ठीक है चलो आप थोड़ा फ्लावर्स तोड़ के आप दे दोगे, हाँ हाँ बहुत खुश हो जाएंगे। दे वुड बी सो हैप्पी एंड थैंकफुल। Yesterday only I got a call from one Mataji. She had been chanting some other mantra and Radha Rani ka, and well, she is very devoted. She has Laddu Gopal. She serves. She reads many scripture, but she still feels एक हॉलोपन है लाइफ पे। वो बोलते मुझे उतना आनंद नहीं आ रहा है, मुझे अभी भी कुछ, मेरे को ऐसा लग रहा है मैं कहीं अटक गई हूँ। एंड आई टोल्ड हर, आप यहाँ अटके हो, आपने अभी सेवा नहीं करी है प्रैक्टिकली वैष्णवों की, तो यू हैव टू कम, यू हैव टू कम, यू हैव टू सर्व the devotees, you have to serve Krishna directly, indirectly, either through Vaishnavas. So ये जब आप करोगे ना तो आपको आनंद की अनुभूति होगी। See, this is one thing that makes bhakti very special. See, जो मायावादीज हैं, ज्ञानीज हैं, योगी हैं, वो लोग ज्ञान कलेक्ट करते हैं, ज्ञान हम भक्ति में भी हमें है, वो मेडिटेट करते हैं, हम मंत्रा मेडिटेशन करते हैं, बट देयर इज वन थिंग दैट इज मिसिंग इन देयर प्रोसेस एंड दैट इज सर्विस एंड द जॉय ऑफ सर्विस। बिकॉज ये चीज जो जो हमें बोलती हूँ, ज्ञान प्लस सर्विस इज इक्वल टू विज्ञान। इफ यू वांट रियलाइज नॉलेज, दैट इज ओनली थ्रू सर्विस। एंड अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। एक बार उनके पास एक व्यक्ति आते हैं, there's one person who comes and he has lot of doubts about
bhakti and scriptures, and he was like little aggressive and argumentative mood में वो आता है, and वो बोलते कि I have a lot of questions, you should, why don't you answer me? तो because he is such a great acharya, he knew what was his mood, so he told कि ठीक है मैं आपके questions जरूर बताऊंगा, I will surely answer you, but could you just do one small service that we require? Actually अभी ना kitchen में थोड़ा urgent requirement है, there's a small service, can you just go and help some devotees there to wash the utensils? तो अब वो मना तो क्या करे, इतने बड़े संत आपसे कुछ मांग रहे तो आप मुंह पे तो ना नहीं कर सकते, तो he was like fine, I'll go, and he goes there, and from morning till evening he is totally engaged in the service of the Lord. वो लगे हुए हैं, उनको जो भक्त जो सेवा दे रहे हैं वो कर रहे हैं, and by evening he is done and he is about to return back. तो वो चल के वापस जा रहे होते हैं, और तभी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने रूम से देखते हैं कि अरे ये जा रहे हैं, तो ही कॉल्स हिम, अरे इधर आइए, तो ही कम्स एंड ही इज लाइक अच्छा मॉर्निंग आप आए थे, आपने बोला था आपको बहुत सारे डाउट्स हैं, तो प्लीज आप बैठिए, चलो हम आपसे बात करेंगे और आपके डाउट्स को सॉल्व करेंगे. देन ही वाज लाइक एक्चुअली आई डोंट हैव एनी मोर डाउट्स लेफ्ट. तो मतलब अब कुछ बचा ही नहीं डाउट्स मेरे मन में. सो दिस इज अ पावर ऑफ सर्विस. सेवा करते हैं ना तो हमारे हृदय में, बोलते हैं ना दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, तो हमारे हृदय में अपने आप ज्ञान प्रकाशित होता है, एंड दिस इज रियलाइज्ड knowledge and it should be performed very joyfully. जब बोलते हैं सुसुखम कर्तुम अव्ययम, भक्ति process should be very joyfully performed. तो हम अगर हम हिमालयाज में जाके किसी केव्स में जाकर हम अगर अकेले भजन करें, of course it will surely give purification and उसका अपना benefits रहेगा, but then अगर हम joyfully perform करेंगे, imagine singing together in a group, it's so joyful. आप वैष्णवों के साथ कीर्तन कर रहे हो, वैष्णवों के साथ डांस कर रहे हो, वैष्णवों के साथ प्रसादम पा रहे हो, वैष्णवों के साथ कुकिंग कर रहे हो, वैष्णवों के साथ हम मंदिर में सेवा कर रहे हैं, तो it becomes such a joyful process. And चाहे वो छोटा, जैसे बोलते ना, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि हम छोटी सर्विस कर रहे हैं बड़ी, उल्टा आजकल क्या हो गया, पहले हमको बोलना पड़ता था कि छोटी सर्विस भी वी शुड टेक इट अप, ऐसा हमको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए. लेकिन आजकल मैं देख रही हूँ ट्रेंड उल्टा हो गया, लोग छोटे सर्विस करने को तैयार है, छोटे इन द सेंस any kind of menial service, they are ready for that, but they are not ready to take big responsibility. नहीं हम qualified नहीं है, अरे माता जी इतना बड़ा सर्विस हम कैसे कर सकते हैं, we are not qualified. But we have to understand we are anyways not qualified. हम बोलते हैं हम fallen है, and you will remain fallen if we don't do service. हम जिंदगी भर ही फॉलन रहेंगे, हम अचानक से उठ नहीं जाएंगे. अगर हम फॉलन है तो वी नीड सर्विस टू प्यूरिफाई आवरसेल्फ. जब हम प्रचार करते हैं तो, और मैं हमेशा ये बोलती हूँ जब मैं क्लास लेती हूँ, पता नहीं इस क्लास से किसी और का उद्धार होगा नहीं होगा, लेकिन मेरा तो जरूर होगा, ये मेरे को 100% गारंटी है. कभी भी क्लास लेती हूँ, सामने वाला सुन रहा है नहीं सुन रहा है, लेकिन मेरा मन तो सुन रहा है. आई नो व्हाट आई एम सेइंग एंड पिंचेस, राइट. अगर हम कुछ बोल रहे हैं जो हम नहीं कर रहे हैं तो वो चुपता है, एंड देन यू रियली फील लाइक डूइंग दैट कि नहीं, अगर मैं बोल रही हूँ तो मुझे ये चीज करनी चाहिए. तो समवेयर ऑफ कोर्स योर नॉलेज इंक्रीजेस, योर प्यूरिफिकेशन हैपेंस, and then you start following what you are speaking, walk your talk. तो ये भी होता है, तो ये बहुत important है. We take up those services even if it's a huge responsibility. We should not shy away, we should not give the excuse that I'm not qualified, because when we are giving this excuse that we are not qualified, we are actually thinking that we are the doers. हम सोच रहे हैं कि हम कुछ कर लेंगे अपने दम पर, एक्चुअली हम करने वाले कोई है ही नहीं. It is only the empowerment of the Guru Parampara or Krishna that we would be able to complete the service. Like yesterday also one girl called, माता जी मेरा फास्टिंग टूट गया, बाय चांस मैंने कुछ खा लिया. मैं बोली अगली बार से सुबह एक बार प्रार्थना करो कृष्णा से कि प्लीज कृष्णा हेल्प मी, गिव मी द स्ट्रेंथ टू इवन कंप्लीट माय एकादशी. एक छोटा सा व्रत करने के लिए भी अगर हमको ताकत मिलती है ना, तो इट इज थ्रू कृष्णा एंड गुरु. हम अपने दम पर एक छोटा सा व्रत भी नहीं कर सकते. To be honestly saying, we can't even follow 4 regulative principles on our own strength. हम अपने दम पर वो भी नहीं कर पाएंगे. ये अभी लग रहा है आसान क्योंकि हमारे पर गुरु की कृपा है. अगर हम गुरु की कृपा ना ले, अगर हम ह्यूमिलिटी से प्राप्त पाएंगे. So we should not give this. Some people, when they shy away from big responsibility, we should not consider ourselves as a doer. Understand that whatever way Krishna wants us to dance,
as a puppet. We should be ready to dance, and he will empower us. Once we start doing the service under a proper training, we learn, and dhire dhire we only get ideas and realizations. And this, I am the classic. I can tell you my life itself is like that. Many people say आपको काफी सर्विसेज आती है. मुझे आती कुछ नहीं थी, मुझे कुछ नहीं आता था. But because I started, somehow I was into some many services, and by seniors, by observing the seniors and the way they trained me, I kept on learning. And sometimes even I am not sure कि मुझे next क्या करना है, but Krishna suddenly gives me some idea. मतलब वो एकदम click होता है कुछ idea, and मुझे last तक भी नहीं मालूम है कि वो success होगा या नहीं होगा, but it somehow becomes successful because Krishna wants that. So sometimes we have to totally, seva teaches you dependency on Krishna, because inevitably you will get lot of problems while doing a service. कुछ बड़ा सर्विस है, अभी 87 गर्ल्स को हम यात्रा लेके गए, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रहा है. कभी ट्रांसपोर्ट वाले से दिक्कत है, कभी प्रसाद वाले से दिक्कत है, कभी कुछ है. Like so many problems were coming, and every time we were just praying, Krishna, only you can take care. And things went on very smoothly. So every time it was taken care of. तो सेवा लेना है, but because it will teach you more dependency on Krishna. So let us not shy away from leadership roles or position. And in ISKCON, one very good statement when Radheshyam Prabhu said, only a person who considers himself the most disqualified for the leadership role is most perfect person to be there as leader. क्योंकि he doesn't need position, he is not attracted to name, fame, glories, all these things. तो जो व्यक्ति सोचता है कि मैं लायक नहीं हूँ, वही सबसे ज्यादा लायक है उस पोजीशन के लिए. If someone is already hankering for a position, that means he wants to become a controller. काफी बार क्या होता है, लीडरशिप पोजीशन में आने के बाद भी हम छोटे ईश्वर बनना चाहते हैं. वी वांट टू बिकम कंट्रोलर्स, वी वांट टू डोमिनेट, वी वांट टू एक्सप्लॉइट पीपल. सम पीपल, सेवा के नाम पर हम सामने वाले से कुछ भी कराते हैं. So we have to understand this is voluntary service. ISKCON में जब भक्त आते हैं, वो लोग voluntarily आ रहे, they are not getting paid for any service. तो हम उनको जबरदस्ती चलो 24 घंटे तुमको मेरी ये सेवा करनी ही पड़ेगी. We can't force them. They should voluntarily, happily perform those services. We have to just inspire them to do service. उनको आप इतना inspiration दो, and you lead from the front. जैसे बोलते हैं ना, पहले के राजा जो होते थे जब आर्मी में जाते थे तो द किंग वुड ऑलवेज लीड द आर्मी. वो सामने रहता था, तो जब वो सामने सेवा करता हुआ दिखता है तो उसके फॉलोअर्स बोलते हैं अच्छा जब मेरा राजा कर रहा है तो मैं भी करूंगा. सो वी हैव टू लीड फ्रॉम द फ्रंट. व्हेन योर पीपल सी यू परफॉर्मिंग सर्विसेज, दे वुड बी इंस्पायर्ड. फिर उनको धक्का नहीं देना पड़ेगा, जबरदस्ती नहीं करवानी पड़ेगी, या हम सेवा के नाम पे अपनी पर्सनल सेवा करवाएंगे कि चलो थोड़ा मेरा कमर दबा दो, मेरे हाथ दबा दो, मेरा ये करा दो, मेरे लिए जरा ये गिफ्ट ले आना, तुम जा रहे हो ना, थोड़ा 2-3 साड़ी वहां से मेरे लिए खरीद के ले आओ. मतलब it should not become very personal. We have to understand they are doing voluntary services, so we have to just make it very joyful and give them the kind of services which is very relatable to their personalities. हमको उनकी psychology समझना है और उनके inherent skills समझना है. A daksha or an expert is a person who can actually assign correct service for the right person. जो person की जो capabilities है, and that was Srila Prabhupada. He was expert in doing that. He knew exactly what are a person's strength, and उन्होंने उनके हिसाब से ही उनको services दी. जैसे जमुना माता जी, she was a very good singer. Actually आज भी हम सुन सकते हैं, सुबह सुबह हर मंदिर में उनके आवाज में गोविंदम आदि पुरुषम बजता है. Actually that was the most beautiful, that was the first bhajan I was so attracted to. मैं दिन रात खाली यही सुनती थी, गोविंदम आदि पुरुषम by यमुना माता जी. That is such a powerful thing that Srila Prabhupada did. And लोग बोलते हैं कि women should not be engaged, and Srila Prabhupada actually engaged a female Vaishnavi in such a beautiful service. In fact, he encouraged her to write a cookbook. She was a wonderful cook of Srila Prabhupada. In fact, वो उनका सेवा भाव इतना ज्यादा था कि once they were traveling in train, and उन्होंने वहां के बोला पैंट्री वालों को कि I want to cook for my spiritual master, क्योंकि प्रभुपाद उनके हाथ का नहीं खाते थे दूसरे का. तो वो बोले कि नहीं हम आपको किचन में जाने नहीं दे सकते हैं. तो वो उन्होंने बोला इफ यू डोंट अलाउ मी टू गो इनसाइड द किचन, आई विल जंप फ्रॉम द ट्रेन एंड गिव अप माय लाइफ. मैं जान दे दूंगी इस यहाँ से कूद कर. तो ये थी उनके सेवा भाव.
कि वो अपने गुरु महाराज के एक टाइम के प्रसाद के लिए भी वो अपनी जान देने को तैयार थी। तो श्रीला प्रभुपाद एक्चुअली recognized this different skills and interest of the devotees, and he engaged him accordingly. तो हम जब लीडरशिप पोजीशन में आते हैं तो हमें भी ये ध्यान रखना है कि हम सबके नेचुरल इंक्लिनेशंस को समझे, वो क्या सेवा कौन सी अच्छे से कर सकते हैं और उनको उस सेवाओं में लगाएं। एंड एक बार प्रभुपाद के पास एक व्यक्ति आते हैं एंड ही इज अ वेरी रिच मैन। तो स्टार्टिंग में वो काफ़ी डोनेशन देते थे एंड देन ही स्टार्टेड डूइंग थोड़ा बहुत सर्विसेज। फिर एक दिन उन्होंने बोला, प्रभुपाद मैं सेवा तो कर रहा हूँ लेकिन अभी आनंद नहीं आ रहा है, मतलब मजा नहीं आ रहा है। तो देन प्रभुपाद ने बोला, देखो पहले आपने धन दिया, फिर तन दिया, अब धीरे धीरे मन भी दे दोगे। सो इट टेक्स टाइम। मतलब तन मन धन तीनों से ही सेवा करना है। सो दिस वे he was an expert leader as well, who knew how to assign service accordingly. एंड ये वॉलंटरी सर्विस के बारे में जैसे मैं एग्जाम्पल में सोच रही थी कि कैसे जो हम इस्कॉन में काफ़ी डिवोटीज आते हैं जो सेवा करते हैं, उसकी दे आर इनवैल्यूएबल एक्चुअली। जैसे हम देखते हैं एक माँ का जो प्रेम होता है वो बहुत नेचुरल होता है, उनको बोलना नहीं पड़ता है। अगर बच्चा भूखा है तो चलो उठो पहले खाना बनाओ, उसके लिए कुछ बना के दे दो। एक माँ नेचुरली शी विल गेट अप, शी विल ट्राई टू कुक। बट वही अगर एक पेड मेड है या फिर हम क्रेश में बच्चे को डालते हैं, they will not take care of the child as much as a mother will do, right? And similarly, when there was this war between Ram and Ravan, तो वहां पे भी उन्होंने बोला कि जैसे विभीषण was telling कि जगह रावण के जितने भी आर्मी वाले ना, they are paid people, so they will do only as much as is required. but आपके जो वानर है ना वो अनपेड है, वो they are fighting for you out of love and devotion and as a service. तो वो अपनी जान भी लगा देंगे और ऐसे लोगों को कोई डिफीट नहीं कर सकता है। एंड सेम थिंग वन फॉरेनर ही एक्चुअली ऑब्जर्व्ड कि जो वर्क स्टाइल होता है ना कॉर्पोरेट कंपनी में, ही ऑब्जर्व्ड इन अमेरिका, जापान एंड देन ही केम टू इंडिया एंड ही रियली अप्रिशिएटेड कि यहाँ इंडिया में जो लोग भी काम करते हैं ना, दे वर्क एज अ फैमिली। इवन इन कंपनी एक फैमिली एनवायरनमेंट है, सब बहुत दिल से काम करते हैं। लेकिन अब अमेरिका जाओ, इट्स वेरी मच जितना काम से काम, वेरी प्रोफेशनल, मतलब जितना करना है उतना ही करेंगे, उसके 1 घंटा आधा घंटा भी ज्यादा नहीं करेंगे। दे हैव टू बी पेड फॉर एवरीथिंग। बट इंडिया में क्या है, दे गेट अटैच्ड टू द कंपनी एंड दे टुगेदर दे ट्राई टू वर्क इट आउट एज अ फैमिली। तो ये चीज उनको बहुत अच्छी लगी। ही एक्चुअली अप्रिशिएटेड दिस वैल्यू सिस्टम इन इंडिया। सो ही टोल्ड कि हाँ जापान में सिस्टम बहुत अच्छा है, दे डू इट वेरी ब्यूटिफुली, बट यहाँ पे इन इंडिया दे डू इट एज अ फैमिली। So that value system we have to implement to make corporate work more successful. And then another thing we have to understand, whenever we serve, humility should not just be a part of our service, it should be the heart of our service. So without humility, if we are serving, it's just a mechanical activity. We have to understand हम कोई activity नहीं कर रहे, it's not just another because as women and as girls, many of us we want to be engaged, क्योंकि जो खाली होता है, अभी मैं देख रही हूँ आजकल ट्रेंडिंग, they join some kitty parties, they like to play games, they like to engage themselves, क्योंकि टाइम है, हम टाइम वेस्ट कुछ तो करें। बट don't consider service of the Supreme Lord as just another activity. It's not just another activity. Never consider it as a burden, and never even take as much, take it only as much as you can do justice to. मतलब हम कभी कभी क्या होते हैं, ओवर बहुत सारी सर्विसेज ले लेते हैं और हम फिर उसको प्रेम से नहीं कर पाते, फिर देन इट बिकम्स अ बर्डन। तो कृष्णा विल नॉट बी प्लीज्ड इफ वी डू इट वो चिक चिक करते हुए, वो बड़बड़ करते हुए अगर हम सर्विस कर रहे हैं। सो इट विल नॉट हैव दैट काइंड ऑफ impact that we want to lovingly attract Krishna's glance towards us. हम चाहते हैं कि भगवान हमारी तरफ प्रेम से देखे, तो उसके लिए जरूरी है कि जितना हम बहुत प्रेम पूर्वक कर सके उतनी सेवाएं हम लें। एंड द बेस्ट पार्ट इज वी ऑल आर वेरी फॉर्चुनेट, वी आर पार्ट ऑफ इस्कॉन। एंड यहाँ पे प्रभुपाद ने बहुत स्ट्रक्चर्ड सेवा बनाई है। जैसे आप कई दूसरे मंदिरों में जाओ, लोग कभी जाते हैं कुछ एक सेवा करके चले जाएंगे, या फिर थोड़ा प्रसादम बांट देंगे या फिर समथिंग, बट इस्कॉन इज
some place where you get so many services, and there are services from the youngest kid to the eldest पर्सन. इवन जो बहुत सीनियर सिटीजन है वो ज्यादा चल नहीं सकते, वो बैठ के चरणामृत दे सकते हैं, और कुछ नहीं तो वो तो कर सकते हैं. हरि नाम का जप तो कभी भी कहीं कर जा सकता है, श्रवणम कभी भी किया जा सकता है. बैठे बैठे मैं देखती हूँ इतने ओल्ड माता जी बैठ के गार्लैंड बनाते रहते हैं. सो देयर आर सो मेनी सर्विसेज. एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में है कि भाई वंस इन अ वीक आई विल कम टू टेम्पल, आई विल डू गार्लैंड सेवा. वंस इन अ वीक आई विल कम, आई विल डू प्रीचिंग सर्विस. वंस इन अ वीक, वंस इन अ मंथ आई विल कम एंड आई विल डू दिस सर्विस. तो हर चीज बहुत स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में हमारे लिए अवेलेबल है. एंड देयर आर डिफरेंट kinds of personalities that we have. अभी हम देखेंगे तो overall broadly we can classify कि many of us are very creative. तो जो बहुत क्रिएटिव माइंडसेट के रहते हैं उनको हम वैसी सर्विसेज में लगा सकते हैं. इट कुड बी डिजाइनिंग अ ड्रेस, स्टिचिंग अ ड्रेस, मेकिंग ज्वेलरी फॉर द लॉर्ड, गार्लेंड्स फॉर द लॉर्ड, या फिर हम कुछ अच्छा पोस्टर बैनर बना रहे हैं, या कुछ ड्रामा एक्ट कर रहे हैं, या डांस परफॉर्मेंस कर रहे हैं. तो ये चीज़ें क्रिएटिव गर्ल्स हैं या माताजीज हैं, उनको हम उन चीज़ों में लगाया जा सकता है, उन सेवाओं में. जो इंटेलेक्चुअल है, बहुत ही इंटेलेक्चुअल टाइप ऑफ पीपल है, उनको हम लेक्चर्स सुनने में, ट्रांसक्रिप्शंस करने में, प्रचार करने में, प्रीचिंग करने में, आउटरीच प्रोग्राम्स करने के लिए उसमें उनको यूज़ कर सकते हैं, या भक्ति शास्त्री मॉड्यूल्स बनाने में, या फिर एग्जाम्स बनाने में, क्विजेस बनाने में. दे कैन हेल्प इन those things. And there are some very detail oriented people. They can plan the logistics of some trips. जैसे कुछ ट्रिप्स प्लान हो रहा है तो उसका हम डिटेल्स वर्कआउट करेंगे, हॉल कौन सा रहना है, या फिर कैसा क्या क्या चीज़ें उसमें रहेगी, कारपेट रहेगा, साउंड सिस्टम रहेगा, एंड ऑल दीज थिंग्स. प्रसादम का मेनू क्या रहेगा, उसमें क्या क्या डेकोरेशन करना है, ऑल्टर कैसे डेकोरेट करना है. ऑल दीज डिटेल्स कैन बी, those are the kind of services we can engage them in. Then there are social people. वो बहुत social है, बहुत सबसे मिलते हैं, करते हैं, बहुत freely सभी से mix होते हैं. So these kind of people can be very good in book distributions, preaching program, taking children's programs. तो ये लोग बहुत friendly हैं, बहुत social outreach program, जैसे even on social media they can be helpful. मेकिंग पोस्टर्स, सेंडिंग आउट रील्स आजकल बहुत ट्रेंडिंग है. हर कुछ भी इवेंट होता है तो वी मेक अ शॉर्ट video and we circulate it everywhere. So these are the ways we can actually engage these kind of people in different services. So this is how we can actually perform service. Like again I will end with seva, that acronym that Janma Mataji told. Serve enthusiastically with absorption, attention and affection. And now I would just like to share a small video that I had prepared for one course, where I showed how I people like we have a girls voice forum in Hyderabad. So the mentors and we have advisory board members and we are together trying to engage the girls in various services. तो ये वीडियो में आप देख पाएंगे कि किस तरीके से हमने प्रैक्टिकली उनको डिफरेंट सर्विसेज में लगाया है. एंड इन लोग कितना आनंद पूर्वक, बहुत खुशी खुशी, they are like happily engaged in the services. So most girls they always tell me कि please engage me, माता जी कुछ सेवा है तो बोलो, कुछ सेवा है तो बोलो. And whenever I tell them अरे ये सेवा है, and they very happily come and they really find that as the most attractive part of the devotional service. तो ये एक छोटा सा मैं वीडियो आप लोग को दिखाऊंगी, where practically you can see how we are trying to implement actually, and trying to engage these girls in different services. आप लोग को दिख रहा है ये? जी माता जी. हमको इंडिविजुअल स्टैंड, जैसे मैं बताई, ये 4 तरह के गर्ल्स हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करके उनको एंगेज करना है. सो दिस इज द गर्ल्स वॉइस टीम दैट वी हैव in Hyderabad. And these girls, they help us make, in Vasant Panchami we make the complete flower dress and flower jewelry for the lordships. So twice and thrice we were actually engaged in this kind of services. In boat festivals also we actually did the whole decoration of the boat with flowers, and we even the basic cutouts, the flower rangoli on the pond, everything was done by the girls. एंड फिर झूलन यात्रा में हम तरह तरह के झूले भगवान के सजाते हैं, एवरी टाइम विद अ डिफरेंट थीम एंड कॉन्सेप्ट.
तो ये आप देख सकते हो जो हमने पहले किया है इतने सालों में। एंड जब कार्तिक मंथ होता है तो 1 मंथ वी गेट दिस अपॉर्चुनिटी जहाँ पे द गर्ल्स ओनली दे ड्रेस द डीटीज, मतलब ये यशोदा माई एंड दामोदर जी को वो हर दिन अलग अलग न्यू साड़ी ऑर्नामेंट्स में पूरा श्रृंगार करते। सी इज वेरी, इट कम्स वेरी नेचुरली। लड़कियों को, वुमेन को बहुत शौक है तैयार होना, सुंदर लगना, श्रृंगार करना, तो ये श्रृंगार रस बहुत नेचुरली आता है। सो वी ट्राई टू मेक द डीटीज मोर ब्यूटीफुल, तब ये हमारी जो पर्सनल अटैचमेंट होते हैं ना कि हमको खुद को सुंदर लगना है, वो धीरे धीरे कम होते जाता है, बिकॉज नाउ आवर फोकस चेंजेस ऑन हाउ टू मेक कृष्णा मोस्ट ब्यूटीफुल। या तो इस तरीके से फिर हम रास पूर्णिमा का जैसे हमने पूरी ज्वेलरी बनाई थी। एक सेकेंड। हाँ, Rapid Mataji. हाँ, and then maybe someone has done some design, I'll do it again. हाँ, Prabhupada appearance and disappearance day में these girls, they help us make complete flower rangoli on the bed and decorate the whole bed with all these flower hangings. Everything is done by them only. You can see different kind of hangings. All these things are done by the girls in flower decorations. So these are mostly creative girls. Then leading kirtans, learning different instruments. So these are the different ways you can learn kartal, mridanga, sing, harmonium. All these things, these are different ways where we can actually do services. Then those who are interested in drama, we can write script, the editing of the sound, acting, costumes. There is so much that goes beyond drama and dance performance. And then poster designing for outreach programs. So there are many girls. Actually, we never do it ourselves. मुझे तो आज तक कुछ भी सेवा रहती है designing का, I just tell my girls and immediately they make beautiful posters and we just post it. तो ये लोग बहुत creative होते हैं, तो such kind of people who are very digitally sound, उनको बहुत knowledge है, they can make PPTs and posters and they can serve the lordships. And then painting, of course, there are many girls, most girls are very creative. So this is the japa steps they painted, and then the deities also were repainted every year. And the pots that we paint for Jagannath Rath Yatra, we offer the bhoga in that. So this was a beautiful, complete, frame made by a girl, which depicted the whole Pandharpur Yatra through different paintings and small pictures like that. And then we painted the whole Goshala wall. Actually, that was done very professionally done. I mean, when you go and see it, it looks like someone professional has done, but it is all done by the girls. And then simple cooking and distribution of prasad seva. They feel so joyful. They are like the last one. They are like, पहले हम माताजी प्रसाद परोसेंगे, last में हम पाएंगे प्रसाद. And even making bhoga, chappan bhoga. And we had many competitions like fireless cooking, and that we could see that these girls are really very talented and they can cook so many unique items. And then we have this holy festival, so I'll just give a glimpse of that, where they also serve by dancing and putting colors on the Lord and doing abhishek, pushpa abhishek of the Lord. So I'll just show you this. I hope you get the sound. कृष्ण मुरारी आए कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी आए कृष्ण मुरारी, होली खेलन तेरो द्वार, होली खेलन तेरो द्वार आए कृष्ण मुरारी। अरे होली खेलन तेरो द्वार आए कृष्ण मुरारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हे ब्रज की ग्वाला, हाँ होली खेलन तेरो द्वार आए
So there was this Gita Marathon book distribution where they always come with us either to schools for book distribution or to different temples, and they put up various stalls. They go with their mentor Matajis, and they go in different groups in different areas, and they help in book distribution. Then getting more enrollments, preaching new members about youth preaching programs and different festivals, then group discussions, debates. These are different services that we can do. Then they help us organize the events, they manage funds, and even put mehndi stalls and books, pani puri stalls and cloth dresses stalls and other things. And then you also have Nirjala Ekadashi, Pandav Nirjala Ekadashi, where we actually chant together for more than 8 hours non-stop. So chanting is also one of the greatest service that we can do for the Supreme Lord. Then going to yatras together, helping each other. And yatras are the best time where you actually extend yourself, and you get so many opportunities to serve. You just have to grab that. अगर आपकी इच्छा है ना, तो आपको बहुत सेवाएं मिल जाएगी और आपको मौका मिलेगा. And I could see the girls were like so helpful, holding each other's bag and trying to get prasadam for each other, and छोटी छोटी चीजों में भी एक दूसरे का ध्यान दे रहे थे. So this is the complete detail. You can actually check out on YouTube if you want to see the Yatra glimpses. But these are the ways we are actually trying to engage the girls in different services. So I'll end for now. So if there is any comment or anyone would like to add to this, please feel free. Thank you very much. Thank you for giving me this service. And I don't know whether I justified this or not, but if there is any question or comments or anyone would like to add, please do add. Hari Bol, superb Mataji. Thank you. Thank you so much for reminding us all the varieties, and also this video and the photos are showing us so many ways we can serve Krishna, and so many nice ways you have engaged all the girls. Beautiful, wonderful Mataji. Thank you. Yeah, thank you, Namrata Mataji. Wonderful session, and very practical. That's why you can actually show us all the different ways we can serve the Lord. So, and the mood, and with nice examples you took this, Mataji. I hope everybody in this forum useful, right? There are so many take-home points in this. So just not the service, but the mood of service with which we do is very important, like Mataji was highlighting. So thank you very much, Namrata Mataji. So we have a lot of girls' boys from outside of Telangana, looks like, right? Mataji, Dhanbad. Actually, one of my friends, Sunita Mataji, she's the main mentor there in Dhanbad. She happened to, I actually put it in my status, so she happened to see that. She was like, can I join? I'm like, please, you are most welcome. She told I'll get some of my girls as well. So many of them have joined. So thank you so much, Mataji. Though I have nothing really to offer you all. You all are already under great leadership. And Sunita Mataji is a complete one-man army, one-woman army, I would say. So she's training them very wonderful. Maybe one of the girls wants to say something. That'll be nice if we can hear from one of the Dhanbad girls. Feeling shy, yeah. I think Sunita Mataji was also there. Mataji, would you like to please add something? You are actually doing so many services. She's even going to tribal areas and preaching there. And she's doing a lot of service, even fund collection and going out. And she, even in Damodar Ashtakam, this Damodar month, she goes on roads and she takes DTs and she lets people offer diya. And they give prasadam. And that's such a great opportunity she's doing. So she's doing a lot of services. अभी नहीं है सुनीता माताजी online? I think she left, Mataji. She was there. Okay. She was there. She was there, yeah, but she left. Maybe Namrata Mataji, we should invite her to talk one day. Yeah, she is the best person. I actually to call for morning program. Her morning program is so disciplined, and every let's girl invite her. from there, Yeah. We'll Japa organize and service, we'll actually call, but she can give a very good class in Hindi actually. that. So It is fine, yeah. invite her for sure.
Thank you. Thank you. Any other Thank you very questions? much, Shila Prabhat. Krishna Mataji. Pranam. Thank you, Hare Krishna Mataji. Mataji, Thank you. Dandavat Pranam. Hare Krishna Mataji, Dandavat Pranam. Actually, recently we Rupa got Mataji from Dhanbad. She's raising. your notice that you are taking classes. Then Santa Mataji told ki, please, we are having this opportunity to join you. Actually, I am having some network issue. And Hare Krishna. So we are हाँ, able to बोलिए, hear ma'am. you well. Please go ahead. Hare Krishna Mataji. हाँ, बोलिए माताजी. हाँ, Mataji, actually Mataji recently told ki you are taking our class and we were so excited. After so many days you have taken session. Actually Mataji is always trying कि आप session ले, लेकिन आप बहुत ज़्यादा busy रहते तो आप session नहीं ले पाते. And actually we are so fortunate कि Mataji हम लोग की mentor है and she is working so much hard for us and she is doing seva so humbly. She is doing her seva and without taking any rest. She is having so much health issues. Then also she is doing her seva and she is guiding us and we are so fortunate कि we are under her guidance. वेरी फॉर्चुनेट. एक्चुअली ऐसा नहीं है, जब वो मुझे बोलते हैं ना आप क्लास लो तब मुझे नहीं होता है, मेरा कोई सेटिंग नहीं होती है. और जब मैं बोलती हूँ मैं क्लास के लिए रेडी हूँ तब आप लोग की कोई सेवा चलती रहती है, तो वो मैच नहीं हो पा रहा है. काफी दिनों से हम कोशिश कर रहे हैं बट वो नहीं हो पा रहा है. आई एम सो सॉरी फॉर दिस. लेकिन यस, सो वेरी माता जी. रूपा माता जी फ्रॉम धनबाद, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? सबके हैंड. Rita Shri Mataji want to speak. हरे कृष्ण माता जी. एक्चुअली हमारा जो जीपीटी क्लासेस रिसेंटली खत्म हुआ, उसके बाद मैं सोच ही रही थी कि क्लासेस इतनी अच्छी चल रही है हमारी, सारे सीनियर डिवोटीज के साथ एसोसिएशन करने को मिल रहा था. आई वाज थिंकिंग कि नेक्स्ट ईयर कब मौका हमें मिलेगा एंड टुडे ओनली आई गॉट द इन्फॉर्मेशन कि आज आपका क्लासेस मिल रहा है. सो इतना ज्यादा खुश हो गए कि वाह, मतलब मैं बस सोच ही रही थी कि जीपीटी क्लासेस खत्म हो गया, बहुत मिस कर रहे हैं दोस डेज को एंड टुडे आई गॉट द अपॉर्चुनिटी. ये तो पूरा थैंक यू जीपीटी सो मच क्लास माता से जी. ही एज इट इज है, मैंने खाली कॉपी पेस्ट किया है आज जो जानना. Thank you so much, Mataji, for this session. थैंक यू फॉर And ज्वाइनिंग. we are feeling so fortunate कि हम सुनीता माता जी के अंडर में, उनके गाइडेंस में है. कि माता जी लिटरली हम देखते हैं ना कि वो कभी भी बॉडली कॉन्शियस में नहीं रहते हैं. हमेशा जो सुबह से रात हो रही है प्रभात के मिशन को आगे बढ़ाना है, कैसे सर्विसेज करना है, एंड वो हमें भी बस गाइड करते रहते हैं कि कैसे सर्विसेज करना है. मीन्स उनका हेल्थ कितना भी खराब रहे तो उससे हमें बहुत इंस्पिरेशन मिलता है कि हमें भी बॉडली कॉन्शियस में नहीं रहना चाहिए. तो आपको Thank प्रैक्टिकल you, Mataji. एग्जाम्पल रोल मॉडल आपके सामने है. थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग. So Thank inspiring. you. तुलसी माता जी फ्रॉम धनबाद एंड रूपा गुप्ता माता जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? Hare Krishna Mataji, Dandavat Pranam. Thank you so much Mataji for the wonderful classes. Mataji, एक बार मैं आपका क्लास मिस किया था, देन मुझे बहुत रिग्रेट फील हुआ था कि मैंने क्यों मिस किया. सबने बोला इतना अच्छा क्लास है. मैं बहुत टाइम से सोच रही थी क्लास नम्रता माताजी का क्लास मिल जाए. फाइनली आई गॉट अ चांस. माताजी, मेरा एक डाउट है, एक क्वेश्चन है. माता जी, हम लोग को जब भी कोई सेवा मिलता है ना, कोई बड़ा सेवा फॉर एग्जांपल अगर मिल जाए तो हमें ना उस पोजीशन से प्यार हो जाता है. अगर फिर हमें छोटा सेवा भी मिलता है ना तो हमें वो लगता है कि हम कैसे करें. तो हम वो हमारे अंदर कैसे डेवलप कर सकते हैं कि हमें सिर्फ सर्विसेज से प्यार होना चाहिए, नॉट अ पोजीशन. कर्णा राधिका माता जी, भारती माता जी, ऑल वुड लाइक टू आंसर. दिव्य लीला माता जी इज ऑल्सो हियर. कोई सीनियर माता जी, आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे? एनीवन? ओके, तो आई थिंक नो वन इज आंसर. तो एक्चुअली ये होता है काफी बार, वी स्टार्ट वेरी इनोसेंटली. जब हम देखते हैं प्रैक्टिकली ना, जब स्टार्टिंग में जब सर्विस करते हैं ना, जब कई लोग आते हैं वो बहुत इनोसेंटली आते हैं, उनको तब उतना पावर पोजीशन ये चीज़ों का अट्रैक्शन नहीं रहता है, वो जेन्युइनली सर्व करना चाहते हैं. बट धीरे धीरे जब हम पोजीशन पे जाते रहते हैं, जब वी स्टार्ट गेटिंग लॉट ऑफ फेम, जब पीपल दे पुट यू ऑन पेडिस्टल, आपको गुरु बना के आपके चरणों की पूजा कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा आपको इतना सम्मान देते हैं, इतना चीज़ें आपको मिलती है, देन धीरे धीरे बोलते हैं ना, पावर एंड पोजीशन इट करप्ट्स. ये बहुत जल्दी आता है बिकॉज इट हैपेंस व्हेन यू स्टार्ट टेकिंग क्रेडिट. जब आप क्रेडिट अपने तक लेकर रख लेते हो ना,
तो दीज थिंग्स विल करप्ट यू, आपको ईगो आ जाएगा, आपका अभिमान बढ़ जाएगा, प्राइड बढ़ जाएगा, और आपका ग्रीड बढ़ जाएगा. इट मे बी मॉनिटरी, इट मे बी फॉर नेम, फेम, पोजिशन, रिस्पेक्ट, ऑल दीज थिंग्स. तो ये चीज़ें आती है व्हेन वी टेक द क्रेडिट टू आवर सेल्फ, व्हेन वी एक्चुअली अंडरस्टैंड नथिंग इज आवर्स, ये क्रेडिट हमारा है ही नहीं, मैंने कुछ किया ही नहीं है. एंड जेन्युइनली जो एक जेन्युइन पर्सन होगा ना, ऑनेस्ट, वो देख पाएगा कि उसकी वजह से चीज़ें नहीं हो रही है. बिकॉज अगर हम करेंगे ना तो हम तो चीज़ों को खराब ही करेंगे, हम अच्छा नहीं कर सकते. It's only because of the mercy of the गुरु परंपरा एंड द सुप्रीम लॉर्ड दैट वी आर एबल टू परफॉर्म दिस सर्विस. जैसे भगवान बोलते हैं हम आई एम द इंटेलिजेंस ऑफ द इंटेलिजेंट. तो जो हमें बुद्धि भी मिल रही है ना कुछ करने की, वो भी भगवान ही दे रहे हैं. और अगर हमें जो एम्पावरमेंट मिल रहा है, अगर हम कुछ बोल पा रहे हैं, बोलते हैं ना मूकम करोति वाचालम पंगुल लंघयते गिरम, हमको चलने की शक्ति, हमको बोलने की शक्ति, वाक पटुता, ये सब चीज हमको देने वाले गुरु हैं. गुरु की कृपा बिना हम चल भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते. कई बार ऐसे होता है जहां प्राइड आता है ना, आप देखो कितने बार ये एग्जाम्पल, कोई सोचता है मैं बहुत महान सिंगर हूँ, बहुत कीर्तनिया हूँ, बहुत अच्छी, आप बिना प्रार्थना के बैठो एंड यू ट्राई टू इम्प्रेस पीपल, आपका गला खराब हो जाएगा, कुछ खांसी आ जाएगी, अटक जाएगा, आप गा ही नहीं पाओगे. ये भी होता है. तो बोलते हैं ना भगवान किसी को राजा भी बना सकता है तो रंक भी बना सकते हैं, राइट. तो इफ कृष्णा कैन पुट यू ऑन दैट पोजिशन, ही कैन इवन टेक दैट अवे विथ यू, फ्रॉम यू. तो ये चीज हमको समझना है, ये पोजीशन इज नॉट फॉर योर एंजॉयमेंट, दैट पोजीशन इज अ पोजीशन गिवन यू, इट्स अ पोजीशन ऑफ सैक्रिफाइस. लीडरशिप पोजीशन, हम क्यों बोलते हैं सर्वेंट लीडर्स, हम कभी भी इस्कॉन में नहीं बोलते वी आर लीडर्स, हम बोलते वी आर सर्वेंट लीडर्स, यानी वी आर देयर टू सर्व. हमारे को वो पोजीशन दी गई ताकि हम सर्व कर सकें. एंड लीडरशिप मीन्स सैक्रिफाइस, यानी आपको सैक्रिफाइसेस करने होंगे, आप अपने लिए नहीं कर रहे हो. लीडर का मतलब है जब आप दूसरे के बेनिफिट्स को ज्यादा देखते हो, यू कीप दैट इन माइंड रादर देन योर ओन पर्सनल लाइफ. जैसे राम जी का हम देखते हैं कितना बड़ा सैक्रिफाइस उन्होंने किया. अभी कई लोग बोलते भी है, क्वेश्चन मार्क करते कि अरे धोबी के बोलने से उन्होंने अपनी वाइफ को छोड़ दिया, बट दैट वाज ऑन अ हायर इंटरेस्ट. जब उन्होंने देखा कि आई एम अ लीडर, आई एम द किंग, मुझे मेरे जो प्रजा है दैट इज लाइक माई चाइल्ड एंड आई हैव टू रिस्पेक्ट देयर ओपिनियन, तो उनको वो डिसीजन लेना पड़ा. ही हैड टू मेक दैट सैक्रिफाइस. सो लीडरशिप मींस आप जो क्रेडिट आ रहा है वो आप भगवान को अर्पण कर दो, आप गुरु परंपरा को अर्पण कर दो. ये मेरी वजह से नहीं हो रहा है, ये मेरे गुरु की वजह से हो रहा है. आपके गुरु अपने गुरु को समर्पण करेंगे, वो उनके गुरु को. इस तरीके से जब ये चीजें, जितना भी आपको प्रेजेस मिल रहा है, अप्रिसिएशन मिल रहा है, क्लैप्स मिल रहे हैं, अपलॉड्स मिल रहे हैं, गिफ्ट्स मिल रहे हैं, ये सब आप अपने गुरु परंपरा को जब सबमिट कर दोगे ना, तो आपको ये प्राइड नहीं आएगा, तब आपको वो अटैचमेंट नहीं आएगा वो पोजीशन के. और ये चीज भी याद रखो, अगर भगवान आपको वहां लेके आए तो वो आपको वहां से गिरा भी सकते. इट डजंट टेक मच टाइम. एंड जैसे बोलते हैं ना, आप जितना ऊंचे जाओगे उतना ज्यादा गिरोगे तो चोट लगेगी, राइट. आप फर्स्ट फ्लोर से कूदो, आपको उतनी नहीं लगेगी. आप 10th फ्लोर से कूदो, आपके हड्डी पसली टूट जाएगी, राइट. सो इट when you fall from a greater height, the pain is more. So understand, when Krishna has taken you there, it is only by his protection, by the protection of your guru, that you are able to serve in that position. ये चीज बहुत सीरियसली समझना है. अगर हम अपने दम पे जाएंगे ना, we can fall, and if we fall once, it will be very difficult to stand up again and walk even in bhakti. तो जो हमारी इतने सालों की भक्ति है, इतना सालों का किया है, वो भी हमारा चले जाएगा. अंडरस्टैंड दैट. तो ये चीजें हमको याद रखनी है, बार बार याद रखनी है, बार बार. जितना भी अप्रिसिएशन है, डोंट कीप इट टू योर सेल्फ, फॉरवर्ड इट इमीडिएटली. जैसे हम व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा था, फॉरवर्ड कर देते हैं, दिमाग ही मत लगाओ, वो अप्रिसिएशन को पर्सनली लेना ही नहीं है. हाँ, अगर कोई आपको बोलता है बहुत अच्छा बोलते हैं, यस I do speak well, but it is because I am repeating the words of Srila Prabhupada. It is because I am repeating the words of आर गुरु परंपरा. इसलिए वो बहुत मीठा है, क्योंकि मैं हरि नाम ले रही हूँ, इसलिए वो बहुत मीठा है. हरि नाम तो मीठा है ही. अगर कोई बोलता है बहुत अच्छा कीर्तन करते हो, हाँ, हरि नाम तो है ही मीठा, वो तो सबको मीठा लगेगा. सो इसमें मेरे कोई ग्लोरीज नहीं है. डोंट टेक एनी ग्लोरीज टू योर सेल्फ. अंडरस्टैंड, एवरीथिंग इज गिवन बाय द सीनियर्स. हमारे वैष्णवों की कृपा, हम सब है ना मर्सी प्रोडक्ट्स है. एक्चुअली पूरे मर्सी प्रोडक्ट्स है. हमको क्या आता था जब हम नए नए इस्कॉन में आते थे, हमको प्रॉपर्ली गार्लेंड बनाना भी नहीं आता था, हमको भोग कैसे लगाना है वो भी नहीं आता था. हम अपने आप को क्या महान समझ रहे हैं, किस बात का प्राइड करेंगे.
व्हाट इज इट इन अस? इतने मिलियंस ऑफ बर्थ से तो हम भटक रहे हैं, हम कुछ भी उखाड़ नहीं सके, तो हमको किस बात का घमंड होना चाहिए? अभी भी हम क्या उखाड़ लेते अगर हमारे को प्रभुपाद की कृपा नहीं मिलती? तो ये चीज हमको बार बार खुद को याद दिलाते रहना है। एंड इसके लिए वन मोर practical step I would tell is try to associate with people who are senior and equals who are more accomplished from you. यानी जो आपसे भी बेहतर सेवा कर रहे हैं, जब आप उनको देखोगे ना, तब आपको लगेगा कि मैं तो कुछ नहीं हूं, मैं तो तुच्छ हूं। तो ऐसे रियलाइजेशंस होने चाहिए। हम क्या करते हैं, अगर हम अपने जूनियर्स के साथ ही घूमते रहेंगे ना, वो लोग तो हमको चढ़ा के रखेंगे, तो हमारा प्राइड और फूलते रहेगा। तो हमको ऐसे लोगों के पास जाना है जो एक पिन मार के हमारा बलून को फोड़ सके। गुरु का चैस्टाइजमेंट सुनना चाहिए। जब गुरु हमको डांटते हैं, जब हमको रेक्टिफाई करते हैं, करेक्ट करते हैं, वो चीज के लिए हमको रेडी होना चाहिए। हम कितने भी ऊंचे हो जाओ, गुरु से ऊपर तो नहीं जा सकेंगे। ये चीज आप याद रखो। हम कितने भी बड़े पोजीशन में लीडर, हम टेम्पल प्रेसिडेंट बन जाए, कुछ भी बन जाए, लेकिन है तो हमारे गुरु के अंडर ही। सो वी शुड बी ऑलवेज बी रेडी टू बी रेक्टिफाइड। हमारा ऑपरेशन सर्जरी होगा तो वी शुड बी रेडी कि चलो काट दो, जो करना है सर्जरी कर दो। सो वी शुड बी रेडी फॉर दैट। तो इसके लिए इट्स बेटर दैट वी ऑल्सो एसोसिएट विथ आर इक्वल्स, जो लोग अलग अलग तरीके से बहुत प्रचार कर रहे हैं। वेन यू सी देम, यू एक्चुअली कैन सी योर अनर्थास वेरी क्लियरली। ऐसा लगेगा कि हम उनके सामने क्या है, हम तो बहुत तुच्छ है। और जब हम सीनियर्स को देखेंगे तो माई गॉड, व्हाट इज द काइंड ऑफ सर्विसेज दे डू। जब मैं राधेश्याम प्रभु जी को देखती हूँ तो मुझे लगता है माई गॉड, वो दिन में 4000 लोगों के मेल्स करते हैं रिप्लाई। मैं तो दिन में 40 लोगों के फोन कॉल रिप्लाई नहीं कर सकती हूँ, तो मैं क्या हूँ उनके सामने? तो फिर मेरा प्राइड अपने आप चकनाचूर हो जाएगा। So for that, you have to associate with seniors and equals also. I hope this answers your question. Thank you so much, Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna, thank you. Yeah, Rupa Gupta Mataji. Hare Krishna Mataji, Dandavat Pranam. Thank you for such a beautiful session, Mataji. Mataji, I have two questions. फर्स्ट माताजी, जैसे कि आपने बोला कि कुछ भी हमारे माइंड में थॉट आ रहा है तो गुरु और कृष्ण की कृपा है, इसीलिए अचानक से वो चीज हिट करता है। लेकिन समटाइम्स क्या होता है, बैड थिंग होता है कि हम भगवान के लिए कुछ बहुत ज्यादा मीन्स एगरली डिसाइड करके रखे हैं। एक बार हम कुकिंग के लिए गए थे, सब कुछ खत्म हो गया है रास्ते में, बोले कैसे कुकिंग करें हम, पक्का ये भगवान ने किया है, तो वो तो गलत मेरा सोच है। तो इस थिंग को कैसे चेंज करें? और सेकंड क्वेश्चन, जैसे कि माता जी आपने बताया कि क्या बोलते हैं, जैसे इतना ही सेवा लो कि जितना कर सकती हो, नहीं तो फिर चिक चिक करके सेवा नहीं करना चाहिए। तो माता जी, अगर हम लोग गुरु को नो बोलेंगे तो जैसे ही हम लोग नो बोलते वैसे ही हम लोग पतित कहलाने लगते हैं। तो ये और ये दो चीज कैसे, दो चीज तो कॉन्ट्राडिक्टिंग जैसा लग रहा है, कैसे? सॉरी, मैं पहले वाले क्वेश्चन भूल गई, आपने क्या बोला था? एक एक क्वेश्चन लेंगे माता जी। अच्छा, पहला क्वेश्चन था माता जी, जैसे कि जब अच्छा चीज जैसे कि दिमाग तो में आप जब आने बुरा लगता कुछ होता है तो एक कोई जरूरी, देखिए माता जी, हमको सेवा करना है। जैसे भगवान क्या बोलते हैं, आप कर्म करो, उसके फल से अटैच्ड मत रहो। सो आप सेवा करोगे तो जरूरी नहीं है कि हर बार सेवा सक्सेसफुल होगी, रिजल्ट सक्सेसफुल ही होगा। इसका क्लासिक एग्जाम्पल है जटायु। जटायु ने सेवा की, सीता को बचाने की कोशिश की, बट क्या वो बचा पाए? Was he successful? No, he was a failure actually. वो तो बचा नहीं पाए, सीता जी तो किडनैप हो गई। लेकिन राम जी तो उनसे बहुत प्रसन्न थे, उन्होंने उनकी पूरी अंतिम क्रिया भी करी जो उन्होंने अपने पिताजी की भी नहीं करी। सो for Krishna or Lord Ram, it doesn't matter whether you are successful or not successful. It is a mood of the service that matters. Attitude of servitude. That is most important. आप सक्सेस हो रहे हो नहीं हो रहे हो फर्क नहीं पड़ता है। और देखो माता जी, ये तो कलयुग है, संसार है, आपको प्रॉब्लम्स तो आएगी। और भगवान एकदम स्मूथ रास्ता भी नहीं देते। हम ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए बोलते हैं कि भक्ति सबसे आसान है, बट भक्ति में भी बहुत दिक्कतें आएंगी। इट इज नॉट गोइंग टू बी अ केक वॉक। यू हैव टू अंडरस्टैंड, जब आप सेवा करते हो, सो दिस सर्विस इज एक्चुअली प्रिपेयर यू फॉर एवरीथिंग, एक्चुअली फॉर टॉलरेंस। आपका जो प्यूरिफिकेशन, आपके पूरे 6 अनर्थ कैसे निकलेंगे, हमको टॉलरेशन, हमारा टॉलरेंस पावर बढ़ता है, हम फेलियर को हैंडल करना सीखते हैं। ऐसा नहीं है कि हर बार सक्सेस, मैंने कुछ बनाया ड्रेस, भगवान को पसंद आ गया, हो सकता है भगवान पहने भी नहीं, उनको ना पसंद आए, वो किसी और का बनाया हुआ ड्रेस पहन ले, ऐसा भी कभी कभी हो जाता है। तो हम दुखी हो जाएंगे, अरे भगवान, हमने तो बहुत मेहनत की, मैं तो 2 रात से जगी हूँ, मैंने आपके लिए ड्रेस स्टिच किया, लेकिन आपने उसका पहन लिया, मेरा नहीं पहना।
And sometimes we have to understand we don't know everything is Krishna's desire. Ultimately उनको जो करना है करते हैं. He doesn't follow any logic. हम उनको question नहीं कर सकते हैं. तो you know sometimes he may accept something जहाँ पे हमने मेहनत नहीं भी की है और हमको वहां क्रेडिट मिल जाएगा जहां हमने कुछ किया नहीं है. और sometimes हमको ने कुछ बुरा नहीं किया उसका डिस्क्रेडिट हमको मिल जाएगा. सो वी डोंट नो, हो सकता है हमने किसी का क्रेडिट कभी छीना होगा तो किसी और कोई और हमारा क्रेडिट ले जाता है. सो देयर इज ऑलवेज अ कनेक्शन. हम आगे का पीछे का नहीं देख पाते बट कृष्णा देख पाते हैं. सो देयर इज ऑलवेज अ रीजन बिहाइंड व्हाट कृष्णा डज. सो लेट अस जस्ट हैव फेथ कि अगर कृष्णा कुछ कर रहे हैं, अगर ही वांट्स मी टू बी अनसक्सेसफुल इन दिस, अगर वो चाह रहे कि मेरा ये फ्लॉप हो. कभी हम केक बनाते 56 भोग में जल जाता है, एकदम बेकार बनता है वो. हम ऐसे तो रोज बहुत अच्छा केक बनाते होंगे लेकिन वो उस दिन जब बना रहे हैं मन से तो वो नहीं बनेगा. तो समवेयर कृष्णा वांट्स टू प्रिपेयर अस फॉर समथिंग. तो उसके पीछे भी कृष्णा का कोई मास्टरमाइंड चलते रहता है जो हम अभी समझ नहीं पा रहे हैं, वो हम बाद में समझ पाएंगे. तो वी हैव टू समटाइम ग्रेसफुली एक्सेप्ट इट कि यू नो ये कृष्णा की मर्जी है, वो शायद स्वीकार. और हो सकता है हमको सामने वाला का नहीं मालूम. जैसे कभी कंपटीशन होता है, आपने बहुत सुंदर एक भोग बनाया, किसी और ने भी बनाया, लेकिन उस दिन आप टाइम पे नहीं पहुंच पाए, आपका भोग नहीं लग पाया, भगवान ने दूसरे का भोग स्वीकार कर लिया. तो वहां पे इंस्टेड ऑफ बीइंग एनवियस वी हैव टू अंडरस्टैंड शायद उसने बहुत प्यार से, बहुत मन से, मुझसे ज्यादा भक्ति से बनाया होगा, आज भगवान ने उनका स्वीकार कर लिया. हो सकता है कल मैं और मन से बनाऊंगी और प्यार से बनाऊंगी, कल भगवान मेरा भी स्वीकार कर लेंगे. और अच्छा है ना, आज उसको मौका मिला. मैं तो हमेशा ही चढ़ाती हूँ, मेरा तो हमेशा ही भगवान स्वीकार करते, एक बार उसका भी स्वीकार कर लिया, क्या गलत है. So somewhere we have to leave this enviousness, or we have to understand सेवा doesn't means it's going to be successful every moment. हर बार वो सक्सेस होगा नहीं होता है, काफी बार होता भी है, बट इट इज अ लर्निंग प्रोसेस ना. आप इसी तरह की तो सीखोगे. कई बार भयंकर चैस्टाइजमेंट भी मिल जाता है, कोई सीनियर अथॉरिटी आपको बहुत डांट भी देगा, तुमको इतना भी नहीं मालूम ये कैसे बनाया है, तुमको ये बेसिक चीज भी नहीं आती है, ऐसे कैसे रंगोली बनाए हो, ये क्या बनाए हो, तुमको कलर कॉम्बिनेशन नहीं मालूम है, कुछ भी आपको चैस्टाइजमेंट भी मिल सकता है. बट वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज हाउ वी विल ग्रो, दिस इज हाउ यू नो ये हमारा प्यूरिफिकेशन प्रोसेस चल रहा है और हमारा ट्रेनिंग चल रही है. अगर हम ये टॉलरेट कर पाते हैं, हम उनके क्रिटिसिज्म को या चैस्टाइजमेंट को एक्सेप्ट कर सकते हैं, वी विल ग्रो अ लॉट इन भक्ति, वरना हमारा डबल प्रमोशन होगा. अंडरस्टैंड दैट. और एनीवन वांट्स टू ऐड प्लीज, एनीवन. मैं बोलते जा रही हूँ, आई डोंट नो भारती मान जी. जी हरे कृष्णा. हाँ ओके एंड ठीक है, जस्ट अ मिनट लेट मी कंप्लीट. एंड दूसरा जो क्वेश्चन था आपका कि नो कैसे बोलना है, तो गुरु को देखो, अगर आपके गुरु और आप में बहुत क्लोज संबंध है तो ही विल अंडरस्टैंड, ही और शी. अगर आपका क्लोज संबंध है, आप यू शुड बी एबल टू रिवील योर हार्ट फ्रीली इन फ्रंट ऑफ योर शिक्षा गुरु या गुरु वट एवर. तो जब उनको भी आपकी सिचुएशन मालूम है, आपका घर का पोजिशन, आपकी लाइफस्टाइल मालूम है, तो वो भी आपको उतना ही देंगे जितना आप ले सके. लेकिन अगर आपको कहीं लगता है कि अति हो रहा है, इससे मेरी साधना खराब हो रही है, मेरा कॉन्शियसनेस खराब हो रहा है, मैं उसको सही तरीके से अंजाम नहीं दे पा रही हूँ, सो यू शुड फर्स्ट रिवील योर हार्ट इन अ वेरी पोलाइट मैनर, इन अ रिक्वेस्टिंग मोड टू योर गुरु. और 100% वो अगर बहुत ही मैच्योर लीडर है तो दे विल अंडरस्टैंड एंड दे विल अग्री, क्योंकि वो भी नहीं जानते. देखो, जब आप 10 चीज करते हो आप बहुत अच्छे से करोगे, इफेक्टिवली करोगे. जब आप 50 चीज कर रहे हो तो उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी. तो वो भी ये चीज समझेंगे, ऐसा नहीं है. तो हमको मुंह पे स्ट्रेट फॉरवर्ड नो एकदम रूडली नहीं बोलना है, हमको बहुत पोलाइटली अपनी पोजीशन समझाना है, अपनी दिक्कतें समझाना है. एंड अगर आपका और उनका बहुत अच्छा संबंध है, वो आपको जरूर समझेंगे और वो खुद ही बोलेंगे ठीक है बेटा अभी नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, आप सिर्फ इतनी सेवा करो, मैं ये सेवा किसी और को देता हूँ या देती हूँ. तो दैट शुड हैपन आइडियली. अगर कोई बहुत वर्क ओरिएंटेड है कि नहीं मुझे मेरे बस काम से मतलब है, चाहे लोगों का कुछ भी हो, तो दैट काइंड ऑफ पर्सन दे विल यू नो दे विल जस्ट ट्राई टू गेट द वर्क डन. तो वो बहुत वर्क ओरिएंटेड है, दे आर नॉट पीपल ओरिएंटेड. लेकिन एक जो अच्छा लीडर होता है, दे शुड ऑल्सो बी पीपल ओरिएंटेड. ऐसा नहीं है कि हम खाली चूज के हमारा बस काम होने से मतलब है, इट शुड नॉट बी लाइक दैट. वी शुड सी दैट जो भी हमारे सबॉर्डिनेट सेवा कर रहे हैं, दे शुड बी वेरी जॉयफुल एंड हैप्पी डूइंग द सर्विस. एंड सेवा के बाद उसका फीडबैक सेशन भी होना चाहिए, अप्रिसिएशन भी होना चाहिए, ताकि वो दे फील एनकरेज कि हाँ हमारे सेवा को रिकॉग्नाइज किया गया है, हमारे को उसके लिए एनकरेज किया जा रहा है, सो दैट दे सर्व बेटर नेक्स्ट टाइम. So that is how an ideal leader should be. Yeah.
I hope I answered that. हाँ माता जी, थैंक यू सो मच फॉर द एक्सप्लेनेशन। माता जी लेकिन नो तो हो रहा है ना, मीन्स ऐसा नहीं है कि हम लोग को ज्यादा सेवा, मीन्स एक क्वेश्चन है कि अगर ऐसा होता है कि हम लोग को उतना ही सेवा मिलता है जितना हम लोग करते हैं, क्योंकि सुनीता माता जी हम लोग को समझती है कि हम लोग का लाइफ स्टाइल, क्योंकि हम लोग अपने बारे में सब कुछ माता जी को बता के रखे हैं। लेकिन मेरा सिर्फ वो एक ही वो सवाल था कि जैसे कि दो चीज तो एक साथ नहीं ना हो सकता, मीन्स नो भी नहीं बोल सकते और करना भी है सेवा, मीन्स अब ये समझना है नो कि आप बोलते नो हैं ना, क्यों बोलना नो चाह रहे हैं। नो आप आलस हम बोलना नहीं चाह रहे, मीन्स एक लेक्चर में सुने थे, मीन्स प्रभु जी बोल रहे थे कि नो बोलते ही पतित हो जाता है इंसान। ऐसा नहीं है, समटाइम्स वी हैव टू अपने लाइंस क्लियरली ड्रॉ करना है। ऐसा नहीं है, अब जैसे भक्ति में है, अगर कोई कुछ ज्यादा है, क्योंकि ज्यादा ही हो जा रहा है, कुछ ज्यादा ही सेवा आपसे करा रहे, जो आपसे नहीं हो पा रहा है, आप उसको प्रॉपरली नहीं कर पा रहे, उससे आपका साधना भी इफेक्ट हो रहा है, तो समवेयर यू हैव टू लर्न टू से नो इन अ वेरी पोलाइट वे। ऐसा नहीं है कि आपको रूडली बोलना है, और नो बोलना कोई वो गलत चीज नहीं है, बट इट्स नॉट कि आपको जेन्युइनली आप कर सकते हो सेवा, लेकिन आप आलस्य की वजह से या लेथर्जी की वजह से यू आर नॉट टेकिंग अप सेवा, या फिर हम एक सबसे बड़ा एक्सक्यूज, नहीं नहीं माता जी हम क्वालिफाइड नहीं है, मुझसे नहीं होगा, मैं तो इस लायक ही नहीं हूँ, हम नालायक समझ के हम सेवा लेते नहीं और हम कभी लायक बनते भी नहीं है। तो वो एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए ना बनने ना कहने का। बट अगर जेन्युइन रीजन है तो वी शुड ऑल्सो, क्योंकि इवन पर्सनल लाइफ देयर विल बी पीपल हु विल कम एंड एक्सप्लॉइट यू। जैसे कॉर्पोरेट लाइफ में आप जैसे आप जॉब कर रहे हो या फैमिली में है, तो समवेयर यू हैव टू ड्रॉ द लाइन ना, आप किसी को भी मतलब उतना। बट या व्हेन इट कम्स टू गुरु, वी शुड नॉट बी चूजी अबाउट द सेवा कि नहीं मुझे तो यही सेवा करना है, ये सेवा नहीं करना है। जैसे हम प्रभुपाद का देखते हैं, उनके जो डिसाइपल्स थे उनको नहीं मालूम था, उनको प्रभुपाद ने बोला जाओ लंदन में मंदिर खोलो, प्रचार करो, दे वेंट, उनको कुछ भी नहीं पता था वहां पे क्या कैसे जाना है, कैसे मंदिर खोलना है, क्या करना है, उनके पास पैसे तक नहीं थे, बट दे ट्रस्टेड एंड दे वर एम्पावर्ड, तो उन्होंने किया। ऐसे वो ट्रेन में जा रहे थे, अचानक से दिल्ली स्टेशन आया, वहां उन्होंने गुरुदास प्रभु को बोला आप उतर जाओ, यहाँ पे एक मंदिर बनाओ, एंड गुरुदास प्रभु उतर गए। एक सूटकेस लिया, उनको पता नहीं आगे क्या करना है, कुछ भी नहीं पता है, बट ऑफ कोर्स दैट शुड बी द काइंड ऑफ सरेंडर वी शुड हैव। मतलब अपने गुरु पे उतना फेथ होना चाहिए कि ये मुझे अगर कुछ दे रहे हैं तो ये भी ही 100% नोज कि आई कैन डू इट एंड ही विल एम्पावर मी टू डू दैट। तो ये 100% सरेंडर तो गुरु के प्रति होना चाहिए, उतना फेथ होना चाहिए कि ये जो अगर कुछ बोल रहे हैं तो बहुत सोच समझ के बोल रहे हैं, मेरी कैपेसिटी देख कर ही बोल रहे हैं। तो वो ट्रस्ट, वो सरेंडर बहुत जरूरी है गुरु के प्रति, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन हम आई डोंट नो, अगर मे बी करुणा राधिका माता जी यू कैन इलेबरेट, नो बोलने से हम पतित हो जाते हैं या वैसा कुछ, मतलब आई डोंट थिंक, मतलब मैंने तो ऐसा कुछ एग्जैक्टली सुना नहीं है। या भारती माता जी और दिव्य लीला माता जी, आप इस पे कुछ बोल सकते हैं क्या, टिप्पणी? सो आई डोंट थिंक सो, मैंने ऐसा मतलब हाँ सरेंडर होना चाहिए एंड दैट इज हाउ। अभी जो पहले के थे गुरु, जो शिष्य थे उतना सरेंडर रहता था 100%, एंड दे वुड फॉलो, जो भी उनको बोला जाता था वो 100% करते थे। लेकिन अब जैसे प्रैक्टिकली, जैसे आप पूरी माला छोड़ रहे हो, आप माला नहीं कर पा रहे हो, आप 24 घंटे सेवा कर रहे हो, और आपके गुरु को लग रहा है कि आपकी माला हो गई है, लेकिन आप सेवा में इतना इन्वॉल्व हो गए कि आप माला नहीं कर पा रहे हो, तो ये चीजें आपको उनको कन्वे करना होगा ना प्यार से कि माता जी मेरे ये घर में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, मैं माला नहीं कर पा रही हूँ सेवा के चक्कर में। तो ये चीजें आपको कहीं ना कहीं प्यार से कन्वे करना होगा। सो उसमें कोई गलत नहीं है, आपको प्रॉपर कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है कि आप अपना दिल खोल के आप अपने गुरु से शेयर कर सके, ऐसा नहीं है। Yeah. So Anupriya and Sri Lakshmi, one of you. थैंक यू माता जी। Thank you. हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। अभी आपने बोला कि वी डोंट हैव टू बी चूजी ओवर सेवा, बट अगर जिस सेवा में हम लोग अच्छे नहीं है, जैसे कि अगर कुकिंग है तो आई एम नॉट गुड एट कुकिंग, तो मैं उसको छोड़ दूंगी। उसको मुझे नहीं आता कुकिंग करना, मैं किसी और में अच्छी हूँ तो मैं उसको चूज करूंगी। तो फिर अगर मुझे कुकिंग नहीं आता और मुझे कुकिंग सेवा मिल गया, देन मैं बोलूंगी कि मैं मुझे ये सेवा नहीं करना। तो हम इसको इसमें अगर हम करेंगे कुकिंग सेवा, तो वो क्या होगा कि मैं अच्छा कुक नहीं करूंगी, मे बी आई डोंट कुक गुड, भगवान को पसंद नहीं आएगा वो।
तो क्या करें, चूजी तो होना पड़ता है कभी कभी हमारा वो इंटरेस्ट देके कि मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझसे क्या अच्छा होगा। तो आप देखिए बात जी, जरूरी नहीं है कि आप डायरेक्ट, और कोई भी आपको डायरेक्ट कुकिंग सेवा नहीं देगा जब तक वो आपके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रखता है। आपको ऐसा नहीं कि जाके डीटी किचन में सीधा जाओ आप बना लो, वैसा आपको मौका मिलेगा भी नहीं, बिकॉज बहुत रेयरली वो अपॉर्चुनिटी मिलता है, अनलेस दे आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट योर स्किल्स कि आप वो कर पाओगे। पहले आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है चलो बेसिक सब्जी चॉपिंग करो, कोतमीर तोड़ के दो, या फिर आप मिर्ची तोड़ के दो, कुछ बेसिक आपको असिस्ट करना है। इनिशियली यू स्टार्ट बाय असिस्टिंग सीनियर डिवोटीज, और फिर आप धीरे धीरे सीख सकते हो। आपको कुकिंग नहीं आता है इसका मतलब ये नहीं कि आप जिंदगी भर कुकिंग सीखोगे भी नहीं। डज दैट मीन दैट अगर आप आपका नो बोलने का मतलब हो जाएगा कि आप कभी सीखना भी नहीं चाहते हो। सो आपको कोशिश तो करनी, आप यू कैन से कि मुझे अभी पकाना नहीं आता। सपोज आपको बोला गया है कि अभी महाराज आ रहे अर्जेंट हलवा बना दो, और आपको हलवा बनाना आता ही नहीं है। इनफैक्ट पहले प्रभुपाद के डिसाइपल्स ऐसे ही थे, जो माता जी कुक करती थी उनको कुछ नहीं आता था, इंडियन फूड तो आता ही नहीं था। तो प्रभुपाद ने एक्चुअली अपने हाथ से कचौड़ी कैसे बनाना है उन्होंने पर्सनली एग्जाम्पल से सिखाया उनको। अच्छा ऐसे कचौड़ी बनाते हैं, उनको क्या मालूम जो फॉरेनर्स है कचौड़ी क्या होती है, समोसा क्या होता है, दे हैव नेवर सीन इट। तो जो लीडर होता है वो आपको ट्रेन करेगा, तो यू शुड बी रेडी टू बी ट्रेन ऑल्सो ना। आप अगर पहले ही वो मेंटल ब्लॉक लेके जाओगे कि भाई ये चीज मेरे बस की रही है, मैं कभी कर ही नहीं सकती हूँ, तो यू कैन नेवर लर्न। तो और आपको रेडी, हाँ सी यू कैन टेल ऑनेस्टली कि माता जी मुझे अभी आता कुछ नहीं है बट आई कैन असिस्ट यू, आप मुझे जो बोलोगे मैं देख देख के सीख कर करने को तैयार हूँ। सो आपको इनिशियली असिस्ट करने की सेवा मिलेगी, और धीरे धीरे जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे तभी आपको फ्री हैंड दिया जाएगा कि भाई ठीक है जाके कुकिंग कर लो। कोई भी लीडर आपको डायरेक्ट नहीं बोलेगा कि जाके अब आप आज डीटी के लिए प्रसाद बना लो। दे विल ऑल्सो सी वेदर यू आर टैलेंटेड और नॉट, आपके वो स्किल्स उसमें है या नहीं है, राइट। एंड देन देर आर ऑप्शंस ऑफ बीइंग ट्रेन्ड। जैसे हम कितना कुकिंग कंपटीशन रखते हैं, कुकिंग वर्कशॉप्स रखते हैं, जहाँ पे हम मेंटर्स सिखाते हैं कि अलग अलग आइटम्स कैसे बनाया जा सकता है। और आजकल तो यूट्यूब है, अगर जहाँ चाह है वहाँ राह है। अगर आप रियली कुछ बनाना चाहते हैं, यूट्यूब पे हर रेसिपी अवेलेबल है। आप घर में पहले एक्सपेरिमेंट करो, थोड़े थोड़े आइटम भगवान के लिए बनाओ, भोग बनाना सीखो। कभी अच्छा बनेगा कभी खराब भी बनेगा, लेकिन आप ऐसे बनाते बनाते सीखोगे, सो यू कैन लर्न। सो ऑफकोर्स आइडियली जो आपका टैलेंट है उसमें आपको इन्वॉल्व किया जाना चाहिए। जो लीडर है दे विल आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ एंड वो आपको उसमें लगाएंगे, बट समटाइम द सिचुएशन में डिमांड अनदर सर्विस, तो उसके लिए यू शुड ऑल्सो बी रेडी। अभी आप बोलोगे अभी काफी सर्विसेज, सपोज जैसे इनिशियली जब प्रचार शुरू हुआ तो प्रभुपाद नीडेड मेनी डिसाइपल्स टू गो टू डिफरेंट वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड प्रीच। उनको कुछ भी नहीं आता था, आरती कैसे करना है, पूजा कैसे करना है, डीटीज कैसे होते हैं, उनको कुछ भी नहीं मालूम, कीर्तन कैसे करना है, कुछ भी नहीं आता था। बट उन्होंने सीखा ना, वो सीखे और फिर उन्होंने प्रचार किया। अब जैसे कई जगह डीटी वर्शिप के लिए कोई नहीं था, तो माता जी इस मंदिर के डीटीज को सर्व करती थी। तो जैसी जरूरत के हिसाब से भी कभी कभी हमको कुछ सेवाएं लेनी पड़ती है, तो उस वक्त आपको लेना चाहिए। नहीं तो आपका प्यूरिफिक, आप बहुत पर्टिकुलर हो जाओगे, इसका मतलब आप बहुत ये एकदम आप बहुत अटैच्ड हो आपके वर्क से। वी हैव टू डू निष्काम सेवा, जहाँ पे आप अपने कार्य से भी अटैच नहीं हो। भाई मुझे मेरे गुरु जो सेवा देते हैं आई एम रेडी टू दैट, आई एम रेडी टू लर्न, आई एम रेडी टू मोल्ड माई सेल्फ। ये फ्लेक्सिबिलिटी आपकी होनी चाहिए। उसके बाद आपके लीडर का भी रोल है कि वो आपको ट्रेन करे प्रॉपरली, ताकि आप उसको जस्टिफाई कर सको उस पोजीशन को। ज्यादातर इस्कॉन में क्या होता है, आपको पोजीशन दे दी जाती है एंड फिर यू ट्राई टू जस्टिफाई दैट रोल। जैसे आपको भक्ति वृक्ष लीडर बना दिया गया है सीनियर, फिर आप कोशिश करते हो कि मैं अच्छे से प्रिपेयर करूं, मैं बहुत अच्छा स्क्रिप्चर पढूं, मैं अपना साधना एकदम एग्जाम्पलरी रखूं, ताकि मैं उसको जस्टिफाई कर सकूं उस रोल को। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको लगेगा कि आज मैं परफेक्ट हूँ, आज मैं इस सेवा के लिए 100% परफेक्ट हूँ। जिस दिन आपको लगा उस दिन एक्चुअली प्राइड आ गया। कोई भी भक्ति में ऐसे नहीं बोल सकता है कि आज मुझे भक्ति का सब कुछ आ गया, आज मुझे सब शास्त्र आ गए, अब मुझे बोलो कहाँ पे क्या प्रचार करना है। हमेशा लगेगा कि देयर इज ऑलवेज समथिंग मिसिंग, मुझे अभी भी कुछ नहीं आता है। सो दैट इज ह्यूमिलिटी ना, द हम्बलनेस तो वहीं पे आती है। सो यू शुड बी रेडी टू बी मोल्डेड अकॉर्डिंग टू टाइम, प्लेस एंड सिचुएशन। या डज दैट आंसर योर क्वेश्चन?
यस माता जी, द वंस हैपन दैट आई कुक्ड समोसा, मतलब मुझे किसी ने बोला नहीं था बट मैंने बनाया उसको और वो उसका अच्छा टर्न ऑफ नहीं हुआ। वो उसके बाद व्हेनेवर आई गो टू गर्ल्स वॉइस तो मैं बोलता आई विल गो टू कुकिंग। मैं तब से कुकिंग में ही जा रही हूँ लगातार ताकि मैं सीख सकूँ। तो मुझे लग रहा है कि अभी भी मैं सीख पा रही हूँ कि नहीं सीख पा रही हूँ, मुझे और करना चाहिए। अगर अच्छा नहीं हो तो छोड़ देती हूँ, मैं किसी और में चली जाती हूँ। सो मतलब मुझे याद है पूछना कि चाहिए, बी हम्बल। आप जब तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या, जब आप ये हम्बली किसी सीनियर माता जी के पास जाओ, माता जी आप समोसा बहुत अच्छा बनाते हो, मेरे को बता सकते हो क्या, एक बार दिखाइए ना कैसे बनाते हो, मुझे सीखना है। आप उनके पास जाके हम्बली जब सीखना चाहोगे तो आप सीख पाओगे। ये सेम चीज मैंने भी की। मुझे मीठा बनाना नहीं आता था उतना, मैं बाकी सब वैरायटी बना सकती हूँ लेकिन मिठाई नहीं आती थी। तो मैंने इंटेंशनली राजभोग सेवा मुझे मिली कि रोज, सॉरी नॉट राजभोग, बाल भोग सेवा, कि रोज सुबह आपको फ्रेश मिठाई बना के लानी है भगवान के भोग के लिए। तो आई स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग, आई स्टार्टेड लर्निंग, रसगुल्ला ये वो, रोज एक नया तरह का मिठाई बनाती थी, रोज लेके जाती थी। एंड बाय कृष्णाज ग्रेस समहाउ आई स्टार्टेड लर्निंग। तो देखिए, वी कैन आस्क पीपल, इसमें कुछ भी नहीं है। मतलब बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है कि हम सीनियर से सीख सकते हैं। आपको नहीं आता, बहुत अच्छा है कि आप अभी भी कुकिंग सेवा में जा रहे हो। तो डोंट ट्राई टू escape, try to learn. There is always a scope of improving. Yeah. थैंक यू सो मच माता जी। तब से मेरा दिमाग में यही चल रहा था कि इफ आई एम इम्परफेक्ट, मुझे नहीं करना चाहिए, आप लोग कर लो, यू आर गुड, यू आर परफेक्ट, मेरे से होगा नहीं। तो मैं तब से बहुत टाइम से मैं और भी सेवा से स्केप करी, बट अब मैं और भी सेवा में जाऊंगी कि मैं उसमें परफेक्ट हो सकूं। जैसे धीरे धीरे कुकिंग अच्छा तो हो रहा है, नॉट गुड बट थोड़ा सा अच्छा हो रहा है पहले से। सो मैं बाकी सेवा में भी जाऊंगी। साल 2 साल आप करते जाओ, फिर आप एक्सपर्ट कुक हो जाओगे, लोग आपसे आके रेसिपीज मांगेंगे। सो यू हैव टू कंसिस्टेंटली पुट योर एफर्ट्स। जब आप कंसिस्टेंट, जैसे एक डांसर होता है, पहले दिन कोई अच्छा डांस नहीं करता है, दूसरे दिन भी कोई अच्छा डांस नहीं करता है, पर वो कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करता है बहुत डेडिकेशन के साथ, तब आप उसको 1 ईयर बाद बोलोगे वाओ यू आर सच एन अमेजिंग डांसर, राइट। सो हम भी परफेक्ट नहीं है माता जी, सब इम्परफेक्ट है, नो वन इज परफेक्ट, ओनली कृष्णा इज परफेक्ट, राइट। तो हम अगर बोलेंगे हम परफेक्ट हो गए तो वी आर ट्राइंग टू compete with कृष्णा। so no one is perfect, but there is always a scope of improvement. We should be open to learning, and yeah, we can show you, we can tell your talent कि माता जी आई एम वेरी गुड इन मेकिंग पोस्टर्स, आपको कुछ कभी पोस्टर बनाना है तो आप मुझे बोलिए, तो शी विल गिव यू एंगेज दैट काइंड ऑफ सर्विस। या माता जी आई नो डांस, इफ यू नीड समटाइम्स वी कैन परफॉर्म फॉर द डीटीज, कभी कुछ जन्माष्टमी फेस्टिवल है तो हम डांस कर सकते हैं। अगर आपका कोई स्पेसिफिक टैलेंट है तो आप अपने मेंटर को बताइए, तो वो लोग और आपको उसमें एंगेज करेंगे। और नहीं तो जो आपको सेवा मिल रही है उसको सीखने की कोशिश करिए और इम्प्रूव करने का प्रयास करिए। या श्री लक्ष्मी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद। थैंक यू माता जी फॉर शेयरिंग ऑल द ब्यूटीफुल इनसाइट्स। मतलब मेरे को भी बहुत कुछ सीखने को मिला, लेकिन मतलब मैं बस कुछ ऐड ऑन करना चाहती हूँ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से। और जो लोग मतलब ऐसे पूछ रहे हैं, तो एक्चुअली क्या होता है कि ऑब्वियसली मेरे केस में हुआ है कि जब हम लोग मतलब हमारे इक्वल से एसोसिएट करते हैं, बिकॉज हम लोग इक्वल हैं, हम लोग कंपैरिजन में ज्यादा लग जाते हैं, तो वहाँ पे ईगो क्लैश आ जाता है। एंड वी ट्राई टू गेट लाइक मतलब एक तरह का वो एनवियसनेस आ जाता है कि अरे हम दोनों इक्वल हैं लेकिन फिर भी ये मुझसे आगे बढ़ रही है। एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम जब हम लोग मतलब एग्जॉल्टेड गुरुजी से, इन सब से मतलब मिलते हैं, तो हम लोगों को लगता है अरे ये तो मतलब बहुत ही आगे चले गए हमसे, हमसे मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, हम इनके जैसा सेवा नहीं कर ही नहीं पाएंगे, तो हम लोग वहाँ पे भी डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो मतलब मेरे हिसाब से एक बैलेंस बनाए रखना चाहिए, ताकि मतलब इवन इफ यू आर ट्राइंग टू लाइक एसोसिएट विद इक्वल्स, तो इमीडिएटली यू शुड आल्सो लाइक, अगर आपको लग रहा है कि आप में प्राइड ज्यादा हो गया है कि लाइक ओके ये मैं काम कर पा रही हूँ, तो इमीडिएटली यू शुड गो एंड एसोसिएट विद पीपल हु आर अबव यू, सो दैट वो ह्यूमिलिटी बना रहे। एंड एट द सेम टाइम जब हम लोग उनसे बढ़ रहे हैं तो उनसे कंपैरिजन नहीं करना चाहिए कि अरे ये इस तरह की सेवा कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ, एंड अपने आप को कोसना नहीं चाहिए कि अरे ये इतना बड़ा सेवा कर रहे हैं, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो वहां से सेल्फ कॉन्फिडेंस चला जाता है। तो मतलब मेरा वैसा है। एंड ऑल्सो अनदर थिंग दैट आई वांटेड टू ऐड, रूपा माता जी के केस में उन्होंने कुछ पूछा था ऐसे कि कभी कभार हम सर्विस देते हैं लेकिन वो वही
कृष्णा एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, दूसरों का एक्सेप्ट करते हैं। तो एक्चुअली ये हुआ है मेरे केस में कि मैं अपने मतलब किसी एक को लेके आई थी एक बार टेम्पल में, एंड मैंने मतलब उनका पहला था इस्कॉन टेम्पल में आना, एंड इमीडिएटली ऑन दैट सेम डे ओनली दे स्टार्टेड लाइक यू नो कुछ ना कुछ, वो उस दिन दामोदर सेवा चल रहा था, तो उन्होंने मतलब इमीडिएटली दामोदर सेवा एक्सेप्ट कर लिया। कृष्णा ने इनका सेवा क्यों एक्सेप्ट किया, जबकि मैं मतलब पूरे 1 साल से ऐसे करती रह रही हूँ। तो तब मुझे रियलाइजेशन हुआ कि like because she was new, Krishna wanted her to like engage first into her service, and with that like you know मेरी भी मतलब humility बनी रहे कि like so that I can also accept कि okay you know what, my service has been rejected because Krishna wanted to make her progress, like start her Krishna consciousness. तो ऐसे मतलब सोच के you know like हम लोग सोच सकते हैं कि you know Krishna might reject our service, क्योंकि हम लोगों को big picture क्या है हमें पता नहीं होता है. So as you said, like there must be something behind it. And sometimes it's not, ये को सर्विस कैन ऑल्सो गिव यू लॉट ऑफ प्राइड। अरे देखो भगवान तो मेरे ही सेवा ले रहे हैं और किसी से नहीं ले रहे हैं। देखो भगवान रोज मैं ही भगवान की पगड़ी बनाती हूँ और भगवान देखो किसी का स्वीकार नहीं करते। तो कहीं ना कहीं भगवान हमारे को भी रेक्टिफाई करना चाहते हैं, एंड ही वांट्स टू ऑल्सो एनकरेज। कोई छोटा सा एक फूल भी लाया तो भगवान उसका स्वीकार करने के लिए रेडी है। सो वी डोंट नो एंड सी इफ यू हैव एनवी, लाइक आई वाज जस्ट थिंकिंग देयर आर 3 C's which actually spoil our bhakti. Complain, criticize, and what is the third C? I don't. Complain, criticize, and Comparison, Mataji. comparison. Yeah, compare. Yeah, complain, criticize, and compare. ये 3 C's we have to avoid if we really want to progress in life. जैसे आपने बोला, जब इक्वल्स के साथ ना बहुत डिफिकल्ट है रिलेशनशिप मेंटेन करना। जूनियर्स के साथ तो हम खुशी खुशी रहते हैं बिकॉज वो हमारे ईगो को पंप करते रहते हैं, हाँ अरे माता जी आप तो बहुत महान है। सीनियर्स के साथ भी हम अच्छा मेंटेन करते हैं क्योंकि अरे ये तो बहुत सीनियर है, दंडवत प्रणाम माता जी, हम अच्छा मैनेज कर लेते हैं क्योंकि हमको मालूम है ना सुनना ही है उनकी। इक्वल्स के साथ ये एनवियसनेस आता, अरे इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल रहा है, मेरे को नहीं मिल रहा है, अरे प्रभु जी उसका नाम लिए मेरा नाम नहीं लिए, उसके ज्यादा फॉलोअर्स है मेरे कम है, मैं भी तो अच्छा क्लास लेती हूँ फिर लोग उसकी क्यों सुनते हैं। तो ये एनवियसनेस आता है। ये यहीं पे करेक्शन की जरूरत है। ये जो हमारे हार्ट में थोड़ा सा भी कीड़ा आता है ना, पहले जाके अपने गुरु को बोल दो, यू नो प्रभु जी माता जी वट एवर, यू नो वाई एम आई फीलिंग दिस काइंड ऑफ एनवियसनेस, मुझे अच्छा नहीं लग रहा उसके प्रति, एंड ट्राई टू फाइंड सम गुड क्वालिटीज दैट यू कैन अप्रिशिएट इन द अदर पर्सन। जब भी किसी के प्रति एनवियसनेस आ रहा है ना, बोलते हैं उसके कम से कम 3 गुड क्वालिटीज आप ढूंढ के लिखो, रोज उस पर मेडिटेट करो, और हर दिन एक 3-3 क्वालिटीज आप ढूंढ की कोशिश करो कि जब आप उसको फिर अप्रिसिएशन आपको आने लग जाएगा कि अरे मैं उसको इतना बुरा समझ रही है, मैं बिना बात का उससे इतना एनवियसनेस कर रही हूँ, तो आई कैन नेवर प्रोग्रेस। चैतन्य चरितामृत में इसका क्लासिक एग्जाम्पल है, जब मुकुंद को भगवान की कृपा नहीं मिली तो एवरीवन वाज अपसेट, पूरे डिवोटीज बोले नहीं नहीं प्लीज यू नो यू गिव मर्सी टू इवन मुकुंद, एंड जैसे ही उनको कृपा मिली सब कितने खुश हो गए। सो दिस इज अ मूड ऑफ अ डिवोटी। जो एक भक्त होता है वो दूसरे के प्रोग्रेस देके एनवियस नहीं होता, जलता नहीं, वो और खुश होता है और आनंद में होता है। अगर आपके मन में कहीं भी थोड़ा सा एक पिंच भी आ रहा है ना, इसका मतलब अभी यू आर नॉट रेडी फॉर गोलोक धाम, अभी बहुत प्यूरिफिकेशन बाकी है, और भगवान पटक पटक के आपको फिर प्यूरिफिकेशन हमको देते ही रहेंगे। इट्स नॉट यू, इट्स अबाउट एवरीवन, हम सभी में। इसलिए कोशिश करना है कि इक्वल्स के साथ भी बहुत अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करना है, एंड वी शुड बी हैप्पी फॉर द प्रोग्रेस। जो एक अच्छा लीडर होता है ना, वो पीछे बैठ के सबसे ज्यादा तालियां बजाता है जब उसके जूनियर्स उससे आगे प्रोग्रेस करते हैं, जब उसके बराबर वाले उससे ज्यादा अचीव करते हैं, वो सबसे पहले क्लैप करता है। ही इज द वन पर्सन हु इज सिटिंग बिहाइंड एंड क्लैपिंग एंड शाउटिंग द लाउडेस्ट। तो वो अच्छा लीडर होता है, वो एक अच्छा भक्त होता है। भगवान आपके ये फीलिंग को देखेंगे, ये इमोशन को देखेंगे, और वो आपको सच में वापस, बोलते हैं ना, गोलोक का गेट आपके लिए खुला रहेगा। अगर हमारे पास एनवी है तो देयर इज नो वेकेंसी इन गोलोका। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। तो सेवा हो कुछ भी हो, यही प्रभुपाद ने क्या बोला, द वे यू कैन प्लीज मी इज बाय कोऑपरेटिंग अमंग योर सेल्फ। हम प्रभुपाद को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, जब हम आपस में कोऑपरेट करके सेवा करें, क्योंकि उनको भी मालूम था आगे ये दिक्कत आएगी, लोग आपस में कोऑपरेट नहीं करेंगे। सो दैट वाज वन थिंग ही एक्चुअली आस्क्ड फ्रॉम ऑल ऑफ अस। सो वी हैव टू ट्राई, एंड एज यू सेड सुपीरियर्स से हमें टच में रहना है ताकि वो हमारा करेक्शन करते रहे। थैंक यू वेरी मच। या रीता श्री। हरे कृष्णा माता जी। सो कई कभी बार होता है ना कि
जब माता जी हमें अगर कोई तो माता जी माता जी कई बार होता है कि माता जी अगर हमें कोई सेवा देते हैं लीड लेने का, तो उसमें हम एक्चुअली चूंकि माता जी चाहते हैं कि हम उस सेवा का लीड ले, तो लीड तो लेते हैं, बट हमारे मन में होता है कि आई एम नॉट एलिजिबल फॉर दैट सर्विस, हाउ कैन वी टेक लीड। तो वो होता है, कई बार होता है मेरे साथ कि अगर किसी सेवा का लीड ले रहे होते हैं तो हमारे मन में चल रहा होता है कि हमें इक्वल्स के साथ वो डील करना है, तो फिर कैसे उसको लीड ले, मतलब अगर कुछ बताना है कि माता जी आपको ये सेवा करना है, प्लीज ये सेवा कंप्लीट कर दीजिए, तो बुरा लगता है कि कैसे बोले ताकि उनको बुरा ना लग जाए कि हमें ये ऑर्डर दे रहे हैं। और कई बार मन में होता है ना कि अगर इनको बुरा ना लग जाए तो छोड़ो हम ही कर देते हैं, तो कोई ये ना सोच ले कि सारी सेवा खुद ही कर रहे हैं, लीड है तो हमें सेवा नहीं दे रहे हैं, तो वो भी होता है। तो उसको कैसे मतलब डील करना है इस चीज को? बहुत प्रैक्टिकल और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। हर जगह दिखता है, ये बहुत होता है, मतलब प्रैक्टिकली मैं हर जगह देखती हूँ, ये बहुत एविटेबल है, ये मतलब होता ही है। सी उसमें क्या है माता जी, एक तो हमको ये देखना है कि हम एक तो अथॉरिटी जब काफी बार होती है, एक अथॉरिटी एक यंग पर्सन को एक हायर पोजीशन दे सकता है। जैसे कभी कभी आप देखोगे भक्ति वृक्ष लीडर की एज कम है और उसके ग्रुप में काफी सीनियर एज्ड डिवोटीज हो सकते हैं जो बहुत सालों से है, तो वहां पे एक अंडरस्टैंडिंग जो बाकी लोगों को है उनको ये समझना है कि बिकॉज ही हैज बीन ऑथराइज्ड, तो हमको उनको उतनी ही रिस्पेक्ट देना है। जैसे अगर कोई आर्मी मैन है, उसको अगर कंट्री में ऑथराइज, गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया है कि यू कैन शूट, तो उसको वो अलाउड है, राइट। तो जब उसको अथॉरिटी मिली है, उसको वो मेडल मिला है, उसको वो पोजीशन दिया है, तो बाकी सबको भी ये समझना है कि भले ये मेरे से उम्र में सेम है या कम है, मुझे उसकी सुना है, क्योंकि वो राइट नाउ ही इज ही इज डिनोटिंग दैट अथॉरिटी, ही इज अ पार्ट ऑफ दैट अथॉरिटेटिव चेन हायरार्की, जो भी जैसे टेम्पल मैनेजमेंट हायरार्की है या जो भी है, उसको वो रिस्पेक्ट देना है, भले वो आपसे यंग हो या फिर जो भी हो। और दूसरा ये है कि हमारा एटीट्यूड ये होना चाहिए कि वी शुड नॉट ट्राई टू डोमिनेट, इंस्ट्रक्ट और शो ऑफ कि हम आपसे ऊपर है। दिस इज अ सर्वेंट लीडरशिप अगेन। हमसे हमें कुछ सेवा करानी है तो भी रिक्वेस्ट करके कराना है। वी कैन ट्राई टू इन्वॉल्व एवरीवन, वी कैन ट्राई टू टेक एवरीवन्स आइडियाज, दैट वे दे विल फील इन्वॉल्व कि हाँ इन्होंने मेरे से भी आइडिया लिया, मुझसे भी पूछा। भले करो आप जो लास्ट में आपके गुरु बोल रहे हैं, आप सेफली बोल सकते हो कि देखो मैंने सबका सुना, लेकिन अल्टीमेटली मुझे जो माता जी ने बोला मैं वही कर रही हूँ, बट दे विल फील इन्वॉल्व। जहां वो नेग्लेक्टेड फील करते हैं, उनको ऐसा लगेगा कि मेरे अंदर टैलेंट है लेकिन मुझे तो यूटिलाइज नहीं किया गया, मुझे कभी ये मौका नहीं मिला, तो दे विल फील हर्ट। ये बहुत काफी लोगों को बहुत हर्ट होता है, दे फील अंडर यूटिलाइज्ड। तो वहां पे आपका रोल ये है कि आपको कोशिश करना है कि आप उनको उनका टैलेंट को एक्नॉलेज करो। अगर कोई बहुत अच्छे आइडियाज है कोई प्रोग्राम के लिए, आप उनको भी इन्वॉल्व करो, भले ही वो उस पोजीशन में रह के ना करे, बट दे कैन ऑलवेज पार्टिसिपेट। व्हाई कांट यू इन्वॉल्व एवरीवन इन द सर्विस, राइट। एंड यू नीड नॉट इंस्ट्रक्ट, अच्छा मैं बोल रही हूँ तुमको करना ही पड़ेगा, नहीं, यू कैन रिक्वेस्ट, माता जी क्या आप थोड़ा सा ये सेवा कर सकते हैं, मतलब उसमें उनको भी फील नहीं होगा, यू नो, लेट अस टुगेदर डू दिस, चलो अपने मिलकर है ना कीर्तन करते हैं, माता जी आप आधे घंटे लीड करो, आधे घंटे मैं लीड करती हूँ, उसमें उनको क्यों बुरा लगेगा? See, somewhere when we try to become controllers, it will hurt many egos. ये आपको आपको सबके ईगो को संभाल के ही चलना है। आपको अपनी तरफ से अथॉरिटेटिव, और कुछ भी हुआ ना, कभी कोई डिसीजन है जो आपको बताना है जो किसी को बुरा लग सकता है, ट्राई टू टेक इट थ्रू अथॉरिटी, कि भाई ये ऊपर से आया है इंस्ट्रक्शन, एंड ट्राई टू पुट इट इन अ वेरी रिस्पेक्टफुल वे, कि जहां पे उनको आप खाली एक मैसेंजर का काम करो, पोस्टमैन का काम करो, ये चीज आप समझा दो कि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं है, मेरा पर्सनल डिसीजन नहीं है, ये चीज ऊपर से आया है और मैं एक मैसेंजर की तरह, पोस्टमैन की तरह आपको खाली चिट्ठी पकड़ा रही हूँ, दैट्स इट। सो आपकी तरफ से आप ये कर सकते हो, उनकी तरफ से ये जरूरी है कि दे हैव टू बी एजुकेटेड, कि दे हैव टू रिस्पेक्ट द पोजीशन। काफी बार हम देखते हैं टेम्पल प्रेसिडेंट बहुत यंग होते हैं, टेम्पल में बहुत सीनियर सिटीजन भी आते हैं, लेकिन दे रिस्पेक्ट हिम, राइट। अभी काफी सन्यासीज भी हम देखते हैं, यंग ब्रह्मचारीज हैं, हमको रिस्पेक्ट करना है, राइट। सो इट डजंट, भक्ति इज नॉट डिफाइंड बाय योर एज और एक्सपीरियंस, मतलब ऑफकोर्स खाली हम सीनियोरिटी ऑफ इयर्स या वो नहीं देख सकते हैं, कभी कभी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, उसको अथॉरिटेटिव पोजीशन दिया गया है, तो वी हैव टू रिस्पेक्ट देम एंड वी हैव टू लिसन टू देम, वो चीज। या डज दैट क्लियर योर? ऐसा भी होता है ना कि मतलब अगर माता जी बोले कि ये सेवा इतने टाइम इंटरवल में कंप्लीट होना चाहिए,
और उसी बीच अगर कोई उस सेवा को अगर करे, कोई से माता जी का आया कि माता जी ये सेवा हम भी करना चाहते हैं, प्लीज हमको भी करने दीजिए, तो फिर हम देखिए माता जी आप ये सेवा इतने टाइम के बीच में कर दीजिए, हमें इतने समय में देना है माता जी को कंप्लीट करके। और वो माता जी किसी वजह से अगर वो पोस्टपोन कर देते हैं कि ठीक है ये इतने टाइम तक देना है, मैं बाद में कर दूंगी, और